Imamul Haq's return to form and fitness revived Balochistan's hopes as they overcame Khyber Pakhtunkhwa in their last game. The skipper guided his team past the finishing line with an unbeaten knock of 64, keeping them in the fray for a semi-final spot. Balochistan need to keep on winning to stay in the hunt. They are now up against Northern, who will be playing without some of their key players. However, Northern are on a high after an impressive win over Central in their last game. A partnership between Amir Jamal and Rohel Nazir set up a win that has brought them to the brink of qualification. Okay, Balochistan and Northern ये एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है मैच 26 का मौका। पॉइंट्स टेबल को देखते चलते हैं। इन दोनों टीम्स की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के पास बड़ा अच्छा चांस है क्योंकि 3 मैच उनके बाकी हैं और 6 पॉइंट हैं, यानी 12 तक वो जा सकते हैं, जबकि नॉर्दर्न जो है वो 10 पर है और नंबर 4 पोजीशन पकड़ी हुई है। बड़ा अच्छा मौका है यंगस्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो बेंच पर थे अभी तक, आएँ परफॉर्म करें और दिखाएं, अपना लोहा मनवाएं, जिसमें अली इमरान शामिल है। रोहेल नज़ीर को हमने देखा कि उनको चांस मिला, उन्होंने परफॉर्म किया और मैच को जितवाया टीम के लिए। मैं नॉर्दर्न की बात कर रहा हूं और नॉर्दर्न को कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास उनके कप्तान और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स जो थे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में चले गए हैं, जिसमें हैदर अली भी हैं, जिसमें आपके पास काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो अब इनके पास मौजूद नहीं हैं। मेरे साथ मरीना मौजूद है। मरीना, अगर हम इस मैच का जायज़ा लें तो अगर मैं पूछूं सिंपल वर्ड्स में, अपर हैंड अभी किसका दिख रहा है? डेफिनेटली नॉर्दर्न का है एंड आई थिंक अगर थोड़ा सा बलूचिस्तान को इनिशिएटिव लेना है जीतने के लिए, दे हैव टू डोमिनेट द पावर प्ले, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हैं चाहे बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब टाइम आता है उनको रन रेट अप करने का बैटिंग में स्पेशली, तब वो स्ट्रगल करते हैं और अप फ्रंट जो है वो विकेट्स नहीं ले रहे। चलिए, हमारी बातचीत तो होती रहेगी। माइक हेजमन तैयार खड़े हुए हैं और माइक हेजमन से हम बात करेंगे, देखेंगे कि पिच क्या कहती है आज। Okay, so I've got a couple of things to chat about with this pitch. Now, I think at the start of this pitch we saw a track which was very different from what we've seen previously in the games we've had here, and I found a reason why. It wasn't quite as hard as the previous tracks we've had. I got my pen down here just as a bit of a reference point, but these are little tiny, you might be able to see these white marks where the ball's just been skidding off the pitch and maybe just going into the pitch, because there are slight indentations here as well. So this is why the ball occasionally just stood up a little bit, and also why the spinner's got a little bit of grip out of this pitch. So little indentations, and also a moth here. I think that's maybe our director who's just opened his wallet, but that's another story. But there you go, there's just some indentations around the place. So that's one of the reasons. I think, by the way, that that's totally dried out now, so there's no problems with the track at all, and I think we're going to be fine later. I don't think the indentations are going to be deep enough to have any concern for the rest of the game. The other thing I want to point out is we're bound to get a bit of dew as well. Okay, so what happened yesterday is that Basad Ali, the coach of Sindh, what he did for one part of their fielding drill before they got for their second game is he put all their balls, about 6 or 7 of their balls, in a bucket, got them soaking wet, got the guys to bowl and also catch and throw and generally field with wet balls, and they reckon that helped a lot. The players, that is, reckon that helped them a lot manage the ball as the game went on, because it got quite wet later on. So I think this track is going to be fine. I think it's settled down now, not too much dramas, but we're going to have to worry about perhaps the dew a little bit later. I don't see any buckets of water around the place either. Let's see what happens. ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की तो वाहिद वो टीम है जिनका कप्तान और उनकी टीम इंटैक्ट है, उनका कोई प्लेयर वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं गया और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें उड़ भी रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी। उसके अलावा सारे के सारे जो कप्तान हैं वो जा चुके हैं, तो फ्रेश स्टार्ट एक तरह से लेना पड़ रहा है। बलूचिस्तान का ये एक एडवांटेज तो है कि उनका जो है कोई ऐसा चंक निकला नहीं है रेगुलर 11 से। बिल्कुल एडवांटेज है, और इमामुल हक भी जो है वो अब फॉर्म में आ रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जो मैच खेला तो उसमें अच्छी इनिंग्स थी, बट अगेन मसला ये आ रहा है कि ना वो रन्स पे, ना बैटिंग साइड पे स्ट्रेंथ उनकी नज़र आ रही है, ना बॉलिंग साइड पे। उनके बॉलर्स जो हैं वो रन्स भी बहुत कंसीड कर रहे हैं, विकेट्स नहीं ले रही, और बैटिंग साइड की बात करें तो कोई ऐसा सच पावर हिटर जो आपका वाव फैक्टर होता है वो लैग कर रहे हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं कि क्या प्लान क्या है दोनों कप्तानों का। टॉस का वक्त हो गया है, बाजिद खान रेडी है।
मेरी अंदर रह गई है। Match box 26 and we're ready for the toss. The matches are coming thick and fast. Got Imam Ul Haq and Umar Amin. Match referee Ali Naqvi, stylish as ever. I believe Imam has the coin. Tails. Tails is the call. We'd like to ball first. क्या करेंगे उमर? बॉलिंग करेंगे सर। कोई खास वजह? वेल अभी तक देखें जिस तरह इस लेग में, कदाफ़ी वाली लेग में ट्रेंड एक सेट हो रहा है चेजिंग वाला, स्पेशली ड्यू फैक्टर को माइंड में रखते हुए ये डिसीजन ले रहे हैं। इमाम, आपकी टीम के लिए आप ज़्यादा मौके नहीं है, मैचेस आपको जीतने ही पड़ेंगे। क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए? आप थोड़ा सा आपने पिकअप किया है। जी बिल्कुल बाजिद भाई, T20 में आपके पास सोचने का टाइम ज़रा कम होता है। हमारे लिए अच्छा था कि जो 2 से 3 दिन का गैप आया था उसमें हमने रीगैदर हुए और बस प्लेयर से थोड़ी सी यही बात हुई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा लेनी पड़ेगी। और आपको पता है डू एंड डाई मैचेस होते हैं तो गलती की गुंजाइश कम होती है, लेकिन हम इसको प्रेशर में नहीं लेना चाहते। वी जस्ट वांट टू एंजॉय अ क्रिकेट और मैच टू मैच खेलना चाहते हैं एंड ट्राई टू विन दिस गेम। उमर, इम्प्रेसिव बात पिछले मैच में ये थी कि वही जो नॉर्दर्न का स्टाइल है कि अटैक करते रहते हैं, आखिरी पार्टनरशिप ऐसी लगी जिसने मैच पार कर दिया। तो ये कैसे बिल्ड होता है टीम में कि एक ही थीम पे चलती जाए? वेल देखें, ये एक माइंडसेट की बात है सारी। आप लोग जिस तरह एक टूर्नामेंट को खेलते हुए आ रहे हो, हम लोग हमेशा अपने प्लेयर से बात ही ये करते हैं कि जो भी एक किसी भी सिचुएशन में नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए और कीप बिलीविंग, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए हर प्लेयर को कि किसी भी सिचुएशन से हम लोगों की टीम ऐसी है कि हम लोग कम बैक कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से मैच जीत सकते हैं, जो पिछले मैच में एक प्राइम एग्जाम्पल थी जो हमने प्रूव भी किया। इमाम, आप पे योरसेल्फ आप पे कितना प्रेशर होता है, क्योंकि आप टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलेंगे और टीम का टोन सेट करेंगे? जी देखें बाजिद भाई, प्रेशर तो आपको पता है किसी भी क्रिकेट में खेल रहे हो आप, प्रेशर में तो होता है, बट इट्स जस्ट दैट आप किस फ्रेम ऑफ माइंड से अंदर गए हो। और हम ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ और मेरे साथ जो टीम है उसकी कोशिश होती है कि हम बोर्ड पे अच्छा टारगेट सेट करें एंड अगली टीम को जो है प्रेशर में रखें। आपकी टीम में आज कोई चेंजेस? ना, सेम टीम। उमर, आपकी टीम में कोई चेंज? जी, हमारी टीम में 2 चेंजेस हैं। हैदर अली की जगह ज़ीशान मलिक आए हैं और सलमान इरशाद की जगह मूसा खान। So the news out here from the center is that Northern have won the toss and have elected to bowl. चलिए, नॉर्दर्न आज चेस करेगा, नॉर्दर्न को देखते चलते हैं। और नॉर्दर्न ने आज सलमान इरशाद को रेस्ट किया है, मोहम्मद मूसा को लेके आए हैं 11 में, ज़ीशान मलिक भी आ गए हैं। और बलोचिस्तान पिछला मैच जीता था, इमाम उल हक फॉर्म में आ गए, ये अच्छी चीज़ है, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जीत रहे हो एक कॉम्बिनेशन से तो सच आपको किसी चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बलोचिस्तान पे थोड़ी नज़र और डाल लेते हैं। इमाम उल हक का फॉर्म जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अब पिछले मैच में उन्होंने फॉर्म ही नहीं, मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी लिया, तो ये एक राइट टाइम है पीक करने का जब 3 मैच आपके पास हैं इंक्लूडिंग ये वाला। बिल्कुल राइट टाइम है। आई थिंक वो एंकर रोल आज से फिर उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन दी अदर एंड ऐसे बैटर्स हैं जो कि जूनियर हैं लेकिन टेक्निकली साउंड हैं, तो थोड़ा सा उनको लेके चलें अगर इस विकेट पे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। स्ट्राइक रेट इमाम का 133 रहा है, आई थिंक थोड़ा सा और बेहतर उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हुआ था पिछली दफ़ा, बट अगेन ही हैज़ टू स्टे टिल एट द एंड। सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यंगस्टर्स का। अब्दुल वाहिद बंगलज़ई बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर नज़र आए हैं हमको, और वो जो कहते हैं ना रोल डेफिनेशन, वो अगर वो समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 50s की हैं लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके, ओपन करते हैं, उनके पास पूरे 20 ओवर हैं जैसे शर्जील ने खेले। बिल्कुल ये चीज़ है, लेकिन अगेन अगर आप पिंडी में भी देखें, इधर भी मैचेस में देखें, अब्दुल्ला शफीक और बंगलज़ई टेक्निकली बहुत साउंड है। जब वो क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं वो क्लासिक लगते हैं, लेकिन जब टाइम आता है अटैक करने का बॉलर्स पे तो जो बना के शॉट्स मारने हैं वो वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं और वहीं विकेट लूज हो जाती है। तो आई थिंक इसमें इमाम का रोल बहुत ज़्यादा है कि वो किस तरह 7 प्लेयर को लेके चलते हैं और एक प्लान आउट करें सेशन, क्योंकि नॉर्दर्न जो है वो उनके बॉलर्स भी तगड़े हैं, जब वो बैटिंग पे आएंगे उनके ओपनर्स भी ऐसे तगड़े हैं जो अटैक करने जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कप्तान जो है वो लीड करे और परफॉर्म करे, उसी से बाकी प्लेयर्स कुछ सीखें और कुछ ग्रैब करें। उमर अमीन को ये रोल करना पड़ेगा आज, बिल्कुल करना पड़ेगा। उमर अमीन का फिर भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो एंकर इनिंग्स अपनी नेचर के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि दूसरे एंड पे उनके पास ऐसे बैटर्स हैं। अगर अली इमरान की बात करें, ज़ीशान आज वापस आ गए हैं, और बात करें नासिर नवाज़, ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल कि वो पहली बॉल से ऐसे खेलते हैं कि वो 100 बना के आए हैं। तो थोड़ा सा एज उनके पास है, क्योंकि दूसरे एंड पे स्कोर हो रहा होता है। रोहिल नज़ीर ने बहुत अच्छा एंड पे आके साथ दिया, लेकिन अगेन ऑब्वियसली जब कैप्टन लीड कर रहा है फ्रंट पे तो फिर आपकी टीम साथ खड़ी होती है। चलिए देखते हैं आज दिन किसका होता है। चांसेस मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान कुछ कर दिखाएगा, देखते हैं क्या होता है। इमाम उल हक वर्सेस उमर अमीन।
गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बलोचिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है उमर अमीन ने। वो नॉर्दर्न के कायम मकाम कप्तान हैं, क्योंकि शादाब खान पाकिस्तान टीम से मुंसलिक हो गए हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 के लिए। अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स ओपन करने के लिए आएंगे। बदस्तूर इनके इब्तदाई अयाम हैं T20 करियर के। अपने डेब्यू पर ये सेंचुरी बनाई थी 102 रन की इनिंग्स इन्होंने मुल्तान में। अब्दुल वाहिद बंगलजई एक और नौजवान क्रिकेटर, सिर्फ 18 बरस उम्र है और अपना तासुर अच्छा छोड़ने में अब तक कामयाब हुए हैं, ख़ास तौर पर रावलपिंडी के मकाम पर, जहां इन्होंने 58 रन की भी इनिंग्स खेली थी, मैच विनिंग। यहाँ गद्दाफी स्टेडियम में आकर बलोचिस्तान ने मैच जीता है। इन्होंने शिकस्त दी थी केपी की बड़ी मजबूत टीम को, इसलिए खबरदार रहना होगा नॉर्दर्न के इन सीनियर क्रिकेटर्स को। सुहेल तनवीर बॉलिंग का आगाज करेंगे, जो कि 376 विकेट लिए हुए हैं। तो एक स्लिप के साथ आएंगे अराउंड द विकेट अब्दुल्ला को। पहला मैच लो स्कोरिंग साबित हुआ, लेकिन उसमें भी हमने अच्छी बैटिंग देखी। इफ्तिखार अहमद ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और उससे पहले शान मसूद ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। तो रन्स दस्तयाब हैं इस पिच पर, अगर आप अपना वक्त गुजारते हैं। विकेट से हम मांग होते हैं मरीना। बिल्कुल, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे, बॉलर्स को पिक करना पड़ेगा और स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के लिए आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मौके देंगे बॉलर्स बाउंड्रीज के लिए भी, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा शॉट खेलने में कामयाब हुए अब्दुल्ला शफीक। दूसरे रन के लिए आसानी के साथ वापस आएंगे। नौमान अली हैं, ज्यादा अर्जेंसी दिखाई नहीं बंगलजई ने। तीसरा रन भी यहाँ बनना चाहिए था, गेंद खासी दूर निकल गई थी और फिर इतनी तेज भी नहीं गई आउटफील्ड में बाउंड्री तक। थोड़ा सा रुक के आया था बॉल, खेलना कवर की जानिब जा रहे थे, लेकिन सीधा गया, मिडल नहीं हुआ। लेकिन बिल्कुल ये चीज़ें जो आपको पहले गेंद से चेक में रखना पड़ेगा कि जहाँ पे तीसरा रन भी है, दूसरा रन भी अवेलेबल है, आप पुश करें, क्योंकि इतनी आसानी से भी रन नहीं बन रहे, लेकिन लूज डिलीवरीज पे आपको ज़रूर बाउंड्रीज मिलेंगी। और शॉट गेंद 4 रन्स, खासी विड्थ मिली और अब्दुल्ला इस पर कैसे वार किए बगैर रह जाते। एक लम्हे के लिए कैचेट की आवाज़ आई थी, लेकिन फील्डर के ऊपर काफ़ी ऊपर था, फिर थोड़ा सा अर्ली खेल गए, कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन खुशकिस्मत रहे। ये लेंथ यहाँ नहीं काम करेगी और बहुत रूम भी दे दिया था सुहेल तनवीर ने। सुहेल तनवीर ज्यादा अच्छी बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, रफ्तार कम लग रही है। रावलपिंडी में भी ज्यादा विकेटें मिली नहीं। नई गेंद इनकी खासियत है, स्विंग करके विकेटें लेते हैं। एक बार फिर गेंद ज्यादा तेज नहीं थी। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ जो मैचेस हुए थे, एमएच शहजाद ने दोनों मौके पर इनको आड़े हाथों लिया पावर प्ले में। ये वाला पिच पहले भी एक मैच में इस्तेमाल हो चुका है, पहले दिन 2 मैचेस इस पे खेले गए थे। थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे, और सुबह से अगर अभी तक देखें थोड़ा सा स्लोअर भी हो रहा है, लेकिन अंडर लाइट्स इस वक्त फिर भी थोड़ी बेहतर बैटिंग सेंस में आ जाते हैं, क्योंकि बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट करके अगर बैटर्स खेलें तो फ़ायदा उठा सकते हैं। बॉलर्स के लिए अभी भी इस पर काफ़ी मुश्किल होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ काफ़ी जगहों पर निशान लगे हुए हैं उन गेंदों के। शाम के वक्तों में हमने देखा है कि विकेट ज़्यादा बेहतर खेलती है। ये पहले मैच में ज़रूर इसमें मॉइस्चर होता है, लेकिन जूं यहाँ हवा चलती है शाम को, क्योंकि हल्की हल्की ओस भी आ जाती है, तो स्किड होकर गेंद बेहतर बल्ले पर आती है। अगर ओस ज़्यादा हो जाए तो फिर बॉलर्स की मुश्किलात बढ़ भी जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो हवा है बिल्कुल ना होने के बराबर।
ड्राइव करने के लिए गए, इस बार बाल बचे। बंगल सही, पहले ओवर में बलूचिस्तान ने बनाए 7। हैदर अली की जगह पर जीशान मलिक आए हैं और मोहम्मद मूसा की टीम में वापसी हुई है। ये भी आउट ऑफ फॉर्म फास्ट बॉलर थे, जबकि बलूचिस्तान ने अपनी वही प्लेइंग 11 आज भी बरकरार रखी है जो कि पिछले मैच में कामयाब रही थी। जमान खान तेज बॉलिंग करते हैं, पवेलियन से आएंगे। आज इन्हीं के ही अंदाज से बॉलिंग करने वाले सलमान इरशाद को जगह नहीं मिल सकी है, क्योंकि 2 दिन पहले उन्हें 56 रन दे दिए थे 4 ओवर्स में। इस बार उठाकर खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन बाउंड्री नहीं मिलेगी। स्विंग के साथ ही खेलने की कोशिश की थी, स्ट्रोक पर पूरा कंट्रोल नहीं था अब्दुल्ला का। एग्रेशन नजर आना शुरू हो गया है और लेंथ अच्छी थी लेकिन सही से मिडल नहीं कर पाए, थोड़ा सा स्केड हुआ था बॉल। और ये इस पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे लेंथ मिल जाती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर ही मारने जाएं। इनमें इतनी एबिलिटी है कि अलोंग द ग्राउंड भी ये चौके ले सकते हैं। देखिए बल्ले का फेस मुड़ गया था इसलिए कंट्रोल नहीं रहा। ये दोनों खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले 6 ओवर्स जो हैं ये फास्ट बॉलर्स के हाथ में जब तक गेंद नहीं है तो तेज से रन्स बना लिए जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि जब स्पिनर आते हैं शाम के वक्त पहली इनिंग्स में तो वो मुश्किलात खड़ी करते हैं इस पिच पर। और मिड ओवर्स में बैटिंग इतनी आसान कई बार रहती नहीं, इसलिए अगर शुरू में आज़ादाना आप खेल लेंगे तो फिर दबाव कम होगा आगे चलकर। आइडिया भी यही होना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए पावर प्ले, लेकिन आज़ादाना खेलने का ये मतलब नहीं कि हर स्ट्रोक आप ऊपर मारने जाए। मैं यही बात कर रही थी कि ये दोनों बहुत टेक्निकल प्लेयर हैं, जब भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, इनको बहुत रन मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये चूज़ करना पड़ेगा शॉट सिलेक्शन के हवाले से कि कौन सी ऊपर मारनी कौन सी नीचे। अब्दुल्ला शफीक अपना बल्ला बिल्कुल ज़मीन पे ये लगाते नहीं हैं जो टैप करते थे पहले पहल बैट्समैन। ये जो मॉडर्न डे खिलाड़ियों की तरह अब देखिए उठा कर रखते हैं। बिल्कुल पहले ये होता था कि तकरीबन हर बैटर टैप करता था, अब एक आई लेवल मेंटेन करना ज़रूरी है। ये नीचे रह गई। इनके खिलाफ भी ये क्रॉस द लाइन खेलना आसान नहीं। ये देखिए बैट, मॉडर्न डे क्रिकेट में ये कहा जाता है कि बॉलर के गैदर होने से पहले आपका आई लेवल जो है वो सिंपल और स्ट्रेट स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टैप कर रहे हो और आप बार बार उठ रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आई लेवल मूव करता है। लेकिन अब जैसे जैसे क्रिकेट तेज़ हो रही है, काफ़ी नई टेक्निक्स आ रही हैं, इसमें से अब कंसिडर ये किया जाता है कि ये ज़्यादा बेहतर टेक्निक है। देखिए लेग स्टंप का गार्ड लिया हुआ है, उससे जाहिर होता है कि ऑफ साइड में स्ट्रोक खेलना इनको ज़्यादा पसंद है अब्दुल्ला शफीक को। ये आप देख सकते हैं ये इनिशियल मूवमेंट है या ट्रिगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, सर बिल्कुल स्टिल रहता है, अच्छी टेक्निक और तवाज़ुन है। और बॉल को आने देते हैं अपने पास, लेट खेलते हैं, अपनी आईज के अंडर खेलते हैं ये भी, और बंगल जई भी अच्छी टेक्निक है, ओपनर्स के हवाले से बहुत अच्छी टेक्निक है। और इसे निकालने में कामयाब हुए, बहुत ज़्यादा फाइन 4 रन्स के लिए फील्डर थे फाइन लेग पर, उनकी और विकेट कीपर के दरमियान खेलने में कामयाब हुए।
इस ओवर में 6 रन बने जमान के, 13 पर कोई नहीं। इमामुल हक इन दिनों वन डाउन खेल रहे हैं क्योंकि अब्दुल वाहिद और अब्दुल्ला की अच्छी पार्टनरशिप है ओपनिंग की, इसको तोड़ना नहीं चाहते थे वो। एक बार फिर अच्छा रन हासिल किया। इस पे नजर रखनी पड़ेगी, ये स्ट्राइक रोटेशन बहुत जरूरी है। जहां आपको बाउंड्रीज नहीं मिल रही वहां पे आप इस तरह सीधे बल्ले से टैप करें। ये वो चौका था जो हासिल किया, क्लास चौका था, ऑफ द हिप्स, फाइन खेला इसको, बहुत अपने बॉडी के क्लोज खेला, अच्छी शॉट थी। और यही बात जमान खान को भी एहसास है इस चीज का। और इसे उठा दिया है, फील्डर दौड़ते हुए आ रहे हैं, गलतफहमी पैदा हो गई थी एक मरहले पर और फिर कैच गिर गया। 3 खिलाड़ी गेंद की तरफ बढ़े थे और ये तकरीबन हाथ लग चली थी। यहाँ ये हम देख सकते हैं गेंद के नीचे तकरीबन पहुंच गए थे आमिर। अच्छी एफर्ट थी लेकिन लेंथ फिर गलत पिक की है और कंट्रोल में नहीं था, बल्ला घूमा था और थोड़ा सा रुके थे बीच में गलतफहमी की वजह से, लेकिन एंड पे हाथों पे लगा और जिंदगी मिली अब्दुल्ला शफीक को। यही आमिर जमाल थे फील्डर। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अराउंड द विकेट आकर अब्दुल्ला शफीक को ऑफ स्टंप के बाहर आर्म फ्री ना करने दिए जाएं, जो कि उनका फेवर्ड एरिया है। कई बार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर करते हैं अराउंड द विकेट राइट हैंडर को, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ पर ना खेल सके ऑफ साइड में। ये एंगल्स पिक करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अक्सर फास्ट बॉलर्स अब दोनों तरफ से बॉलिंग करते हैं, तो आपको पिक करना है कि कौन से एंगल पे आप ऑफ पे शॉट बना सकते हैं या उसको लेग साइड पे या मिड ऑन की जानिब खेला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस बार फुल टॉस पर लिया लेकिन पूरी तरह टाइम नहीं कर सके। अच्छी फील्डिंग की कप्तान उमर अमीन ने। ये 2 बरस पहले की बात है। अब्दुल्ला शफीक ये तो अभी कुछ देर पहले की बात है। ये देखिए बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे आमिर जमाल, लेकिन यहाँ एक कैच गिराए जाने का मौसम है। तो ये जो आपको मंजर दिखाई दे रहा है एलसीसी ग्राउंड का, इस गद्दाफी स्टेडियम से ही मुत्तसिल, यहाँ अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी बनाई थी इस मैदान पर एलसीसी पे, इसी टीम के खिलाफ, नॉर्दर्न के खिलाफ, ग्रेड 2 क्रिकेट में। और इसी तरह के स्ट्रोक्स खेले थे। एक टिपा गाती हुई आई, स्लो डिलीवरी सुहेल तनवीर की, लेकिन ये चाल कामयाब नहीं रही। बहुत उम्दा शॉट, समझदारी इख्तियार की, रूम दिया और कोशिश ये थी कि सीधा ही मारा जाए जो कि सेफ जोन है। अच्छी शॉट थी, ये इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ेगी। अब्दुल्ला शफीक दिखा रहे हैं कि उनके पास क्लास है, टेक्निक है और पावर भी मौजूद है। यहाँ तो मैं आपको बता रहा था कि 2019 में ये अक्टूबर का ही महीना था जब इनने सेकंड 11 में सेंट्रल पंजाब के लिए खेलते हुए डबल सेंचुरी स्कोर की नॉर्दर्न के खिलाफ। कई ऐसे खिलाड़ी हैं नॉर्दर्न के, अली इमरान थे जिनको तजुर्बा हुआ था उस दिन। फाइन लेग पर फील्डर मिलेगा।
एक और अच्छा ओवर बलूचिस्तान के लिए जिसमें 10 रन स्कोर हुए। बलूचिस्तान ने बनाए हैं 23। बलूचिस्तान का ज्यादातर इन्हिसार उनके टॉप ऑर्डर पे रहा है। मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना उम्मीद पे पूरा उतरा नहीं और ना ही उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है। अगर हम T20 की ही बात करते हैं, मोहम्मद मूसा आएंगे। खराब गेंद थी और वही बर्ताव किया अब्दुल्ला ने जो होना चाहिए था। शॉर्ट गेंद लेग स्टंप के बाहर। अच्छा आगाज नहीं था मूसा की जानिब से, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बॉलिंग फॉर्म में, लेकिन अब्दुल्ला बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सिर्फ एंगल करना था बैट को और आराम से 4 रन हासिल किए। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। 4 चौके लगा चुके हैं। 162 उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन इनिंग्स को वुसअत कैसे देनी है ये आर्ट जो है इनको सीखना है T20 में। और शानदार शॉट, कमाल गूंज सुनाई दी। गेंद एक टिपक आती हुई बाउंड्री के आर पार हुई। मूसा को सही वेलकम कर रहे हैं। एक बार फिर शॉट ऑफ लेंथ कराई थी और बहुत टाइम मिल गया था पिक करने का। आउटसाइड ऑफ स्टंप था, लेकिन जैसे ही बल्ले से निकला है मालूम पड़ गया था कि ये 4 रन के लिए जाएगा। यहाँ ज्यादा शॉर्ट गेंद आप नहीं कर सकते। एक ही फील्डर स्क्वायर लेग पर आपने लिया हुआ है, लेकिन अगर इस लेंथ पर आप गेंद कराएंगे अब्दुल्ला शफीक जैसे क्वालिटी बैट्समैन को, तो फिर यही होता रहेगा। बिल्कुल अपनी गलती से सबक सीखने को तैयार नहीं है। गेंद तेज जरूर थी, लेकिन एक मरतबा फिर इंतहाई खराब। 3 गेंदे 3 चौके और ये अब्दुल्ला शफीक इस वक्त कह सकते हैं नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मूसा पिक नहीं कर पा रहे कि क्या लेंथ इस पे कारसाज होगी। और एक बार फिर बहुत बुरी लाइन थी। यहाँ पे रन्स मिलेंगे, ये बात मैं पहले भी कर रही थी। और अगर अब्दुल्ला शफीक और बंगलजई इसी तरह क्रिकेटिंग शॉट्स खेलेंगे तो इनको कोई मुश्किल दरकार नहीं होगी। ये अच्छी आउट स्विंग करते हैं नई गेंद के साथ, तो इनको इनकरेज कर सकते हैं। ये चौथा फील्डर लेग साइड से निकाल के ऑफ साइड में लें। इस बार फिर इन स्विंग करने की कोशिश की थी, ये बेहतर लेंथ थी। देखिए गेंद को जरा सा आगे पिच कराया तो मूवमेंट नजर आई। मूसा का ओवर, पहली बॉल, दूसरी बॉल मिडल से निकली बल्ले से और इसके बाद फिर वही गलती की जो पहली बॉल पे की थी। ये एंगल इनके लिए और ये लेंथ इनके लिए काम नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेस हो, लेकिन सही एरिया में उसको कराना बहुत ज़रूरी है इस विकेट पे। अच्छा स्ट्रोक, गेंद फाइन चली है 4 रन के लिए। नौमान थे थर्ड मैन बाउंड्री पर, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। विकेट की दोनों जानिब बाउंड्रीज लग रही हैं। कप्तान को बॉलर के पास जाने की जरूरत है। भले का फेस खोला, बहुत लेट खेला था। थर्ड मैन काफी वाइड था और फायदा उठाया पेस का। यही समझदार बैटिंग है। बंगलजई दूसरे एंड पे खड़े बस अब्दुल्ला को सराह ही सकते हैं, लेकिन मूसा को जल्दी सीखना पड़ेगा। यहाँ ये अच्छी गेंद पर चौका लगाया है अब्दुल्ला शफीक ने, ये उनकी महारत का सबूत था। शानदार क्रिकेट अब्दुल्ला शफीक की। इस ओवर में उन्होंने 16 रन बनाए। 4 के बाद कोई विकेट नहीं गिरी बलूचिस्तान की 39 पे।
38 of 21. It's all been about Abdullah Shafiq. Total is 39, and amazingly, just 1 run scored by Bangalzai. It's been 7 boundaries off the bat of Abdullah Shafiq in those tall buildings, all about the right-hander getting it to the fence. He's been left behind. But how exciting is Shafiq? My goodness. This has been a terrific inning so far from him. Just gather yourself. Have a sip of tea, Tapal tea moment, because right now it's Abdullah Shafiq is on fire. They look thoroughly absorbed in the cricket. Gets it through. This time Bangalzai with timing. Just the 2. That was pretty lucky. He almost overbalanced there. Would have overbalanced, and it certainly would have been more than the 2. Might have been 2 more than 2 if he had overbalanced a little bit more than he would have liked. Right out of the screws, driving on the up. Just got a little bit tangled. The slide came out, and then things just went a little bit haywire there. Thankfully, had enough room to step back and not on the boundary line. Pace, short ball, zip through, given a wide. I mean, just think about these 2 guys. We've seen quite a bit of Bangalzai so far in this tournament. 18 years of age, and he's a couple of 50s. He's played absolutely superbly with those knocks. Now we've got Shafiq, who's lighting up this innings at the moment. Strike rate of 181. This is what Bangalzai's done. Look at that, 58 not out, 50, 29, 24, 19 at the start. Whips it leg side. Good bit of fielding. Noman Ali. So the future of Pakistan cricket with these young kids is seriously exciting. It really is. 18 and 21, these 2 blokes. That's all. A lot of talk about the ball. Oh, there we go. It's a white cat. That's also good luck. I've got a black cat at home, you know that. Which one's better, though? I can't say that. You can. All cats are great. I love cats. Good luck for batsman right now. Noman Ali has a shy. It went straight to him. I think this was quite close. It's a camera position. We would have picked it up. We've got the camera on the other side, you'll see, and he's the man that'll probably be offering a picture for us shortly. Nah, he was okay. Makes room, gets it down to 3rd man. Comes back for the 2nd to make sure that he's on strike with the free hit. Yeah, an early call of the no ball. He was backing away before the call was made, so he was going to play that shot anyway. The bowler took a little bit of a tumble also. There's confirmation that he did overstep. So this could be another big over.
known as Ande Wala Burger, burger with an egg. Where? Just around the corner in the stands. Right, I'm off there. After this stint, I'm off there. There you go, the egg. Now, free hit. Where does he go? Wide ball, so he has another chance. The wide Yorker, the idea was right, but just too wide. Just having a few little problems. The free hit continues. A few problems in his delivery stride at the moment, Zaman. So look and see if he just slips a bit. Perhaps just spinning out as he tries to deliver with that foot not getting a firm enough grip. And the footholds, by the looks of things. Just tried to dig them up a fraction. He's got the sock out the top of the toe, I think, of the boot. Short ball, swing and a miss. Does well. He saved that free hit. That's quite a brave ball with fine leg inside the circle. The line was perfect for it, so it would have connection would have gone, I think, over the top of the keeper actually, had there been any connection. But there was a third man down. Laughing away because Faisal Khan Afridi just said one to the square leg umpire, just checking if there's one ball remaining, and for a moment everybody thought that he signaled no ball. Slow one, two shot, thumped away. Boundary to end the fifth. 50 comes up, it's 51 without loss. Hashtag wear your passion. Shop.pcb.com.pk. Create an account through the official PCB merchandise store right now. Get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 2021. Shirt signed by all the Pakistan squad. Deadline 15th October 2021. 5 lucky winners to be announced through the PCB official portals. Hashtag wear your passion. Abdullah Shafiq now 44 not out. The slow one into the pitch, too short, and it was ample time just to hit it anywhere. And he hit it way over the top of mid-on and into the fence. And so now the last over of the power play, the left arm spin of Numan Ali. And he's got him. Ball just went straight on inside edge onto the pads, and Bangalzai, unfortunate, but has to go. Yeah, just rushed him a bit. Was certainly flat through the air. He was floating him up the other day and he got a bit of tap. This one was just rushed, didn't hit the seam, hit the paint on the white ball, skidded on and ricocheted eventually onto the stumps. So he's broken that partnership. That's exactly what they needed, Northern. They needed to get that sorted out, because these guys were having a terrific time, particularly one of them. Bangalzai goes for 4, 51 for 1. Captain in at number 3, Imamul Haq. And the first ball of spin from Numan Ali got a wicket.
experience in 77 matches. Would like that strike rate to go up, but he's got the ability to bat through the innings and play that anchor role for Balochistan. And Oman Ali will skid it on, inside edge onto the stump. Some say unlucky, but he'll take it. Yeah, they'll all take it. The boys in red will certainly take that, just to upset the rhythm of this innings. And just means that Oman Ali himself has bought a few deliveries in this power play. Got the wicket, so Imam might just take a couple of deliveries. Just a single, so first 3 deliveries are superb. Just a single and a wicket, and now it's up to Abdullah Shafiq to make sure that he ends the power play on a high. They will know that with the Imam Haq at the crease that he's going to take his time, so they're not going to be chasing leather all over the place. Yes, Shafiq is still there, but he will probably also settle down just a little bit, I would imagine. And so they've got a little window here just to sort of get some normality to proceedings. Nicely done. He made room and Oman Ali followed him. And instead of pushing it through, he sort of lessened the pace. I guess to a certain extent it's a little bit tailor-made for Imam right now. He'll just push it around for one at the moment and allow Shafiq to take as much strike as possible. Shafiq will be, I'm sure, happy with that. A little bit more sedate, but he's a naturally aggressive player. He's a very good naturally aggressive player. Dot ball to end the over. It's just 3 off the 6th. It's 51 for 4, 54 for 1. $54 for 1. Run rate of 9 and over in the power play. And the end of the power play, and off spin now introduced. The last over was spin was Oman Ali bowling extremely well. That's 6th over. Wicket. Made sure that didn't leak runs, and it was just the thing that Northern needed. Basir Khan, off spinner, has a job to do, but the field now more widely spread after the power play. Well bowled, very well bowled, very well bowled, buddy. Starts off a bit of turn. He's 19 years of age also, so a youngster just finding his way, and a good idea to get him into the game as soon as possible, as soon as the power play is done. A little bit of turn, yeah, just a bit. Hit through the offside, timed really well. Classy cover drive. Yeah, that is nicely played. Little bit of turn the first delivery, little bit of turn the second, but there was good correction from Imam Haq. It wasn't an out-and-out hard volley either. Nicely controlled. Clearly has made up his mind to be aggressive upon arriving in the middle.
His innings last game would have probably instilled some more confidence in getting after the bowlers as well. Played well in the last game. Full toss, hit into the leg side, just a single. And the other thing about the spinners involved now is the fact that there might be some dew around. Just remember, you can scan that QR code to win exciting prizes. And obviously there's no dew at the moment that's affecting play too much. So the spinners are able to grip the ball quite nicely and give the ball some serious revolutions. When I was out there for the pitch report, there was just a very light film of dew on the grass, very light. It's getting a little bit heavier now. Quite a few of the players, the northern players, have got rags with them, so they're anticipating it to get heavier than that. You talked about the young blood in Pakistan cricket. Interesting fact here that Mubashir, who's bowling right now, he's got a 100 on first-class debut, as has Abdullah Shafiq, who's batting on 46. The youngsters making their mark. A decent over. Just 6 off. It's 60 for 1. Abdullah Shafiq batting so well, it's good time to jump on television. Pakistan, North America, UK and Europe. But if you want to stream it in HD, crisp quality, jump on to PCB YouTube channel or PCB Facebook page. Noman Ali, terrific first over. I love these idiosyncrasies batsmen do have. Have a look at Shafiq's eyes as he sets up here. A little bit of a chat maybe to himself. As he sets up, just have a look how he looks down at the pitch. When he gets into his stance, that's a good thing to do. Just walk away, gather your thoughts a bit. You don't want to be concentrating 100% of the time, all the time. And now we'll be starting to tune in. See the eyes are sort of the glare. Have a look at him looking down at the pitch. There it is. Quick look maybe. No, not that time. Well, whatever he's doing is working. That is a magnificent shot. Brings up his 50 in the best of fashion. Massive 6 over long off. This has been really special. This has been a knocking to sit back and just really enjoy. It's always exciting to see young talent. And we know this guy's been on the sidelines for some 10 months, remarkably. But to see him unleash here and play this sort of innings is really special. 8 4s and 1 6. Not scared to go to 50 with a 6 either. Really good work. He's played some scintillating shots, but I'm going to put my neck out and say that was the best of the lot. Hitting over, mid-off, left arm spin, hitting it so cleanly. Just misses out there, but have a look at this shot. It gets to his 50. Comes down the track and the full flow of the bat through the line. Release from very wide, Noman Ali that time. Just so clean and so pure.
There was never any doubt of that not clearing the fence. Just the perfect swing, absolutely ideal, right through the line of the ball. The extension was on line, everything perfect. Oh yes, beautiful, beautiful boy. निकले के देखिएगा. 68 for 1. सही है. एक खिलाड़ी आउट और बलूचिस्तान के लिए पॉजिटिव्स ये हैं कि एक ही विकेट गिरी है. स्कोर को वो पेस ऑन कर सकते हैं. इमाम मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के बाद पिछले गेम में लंबा खेलने के लिए बाहर उतरे हैं आज और ये क्लियरली नजर आ रहा है उनकी इनिंग्स में कि वो 20 ओवर खेलना चाहते हैं और ये शायद बेहतर भी है. सीनियर मोस्ट हैं, पूरे 20 ओवर खेलें, बाकियों को डिफाइंड रोल्स दें तो आसानी से ये डिजायर्ड स्कोर हासिल कर सकते हैं क्योंकि इवनिंग मैचेस में एक बड़ा टोटल चाहिए होता है. Well bowled, Mobe. 70 for 1 the score. जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही है इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान. अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक. इमामुल हक अभी आए हैं लेकिन इससे पहले जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी बहुत ही अच्छी चल रही थी जिसमें ज़्यादातर रन अब्दुल्ला शफीक ने बनाए. और अच्छी जानदार शॉट, पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन्स. इनसाइड आउट शॉट था, चार्ज किया. ये इनका स्टाइल फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी है. डाउन द विकेट आते हैं और इस बार प्लेसमेंट जो थी वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ थी लेकिन ये थिक आउटसाइड है जिनको थोड़ा सा लक फैक्टर भी आ गया. गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकल गई. तो इससे पहले जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी बड़ी ज़बरदस्त थी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द रन्स अब्दुल्ला शफीक ने बनाए. लेकिन अब कप्तान आ गए इमाम जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी. 2 रन्स लेना चाहते हैं. क्लोज कॉल होगी रन आउट की. ऊपर जाना चाहेंगे थर्ड अंपायर सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि फैसला जो है वो सही हो. थोड़ा बहुत प्रेशर तो डालना पड़ता है फील्ड पर. देखते ये है कि यहाँ क्या सूरत हाल है. इमाम जो है वो डाइव लगाते हैं, इनकी एक अच्छी बात है और यही यंगस्टर्स भी सीखेंगे. अपना बैट स्लाइड करें, डाइव करें क्रीज के अंदर. अपनी विकेट को वैल्यू देनी चाहिए. कितना इंपॉर्टेंट है आपकी विकेट आपके खुद के लिए. नॉट आउट होना चाहिए. ऑफिशियल कॉल भी नॉट आउट ही है. तो 76 पे 1 हो गया स्कोर 9वें ओवर में. हम सोच रहे थे गेम्स थोड़ा स्लो डाउन हो गए होंगे जब से हम लाहौर आए हैं और जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अब चला गया है बबल में तो यंगस्टर्स जब आए थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन ये इसके बरक्स है. 6 तारीख को हमने यहाँ स्टार्ट किया. 4 मैचेस हुए सीनियर्स के साथ. उसका एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इसके बाद में बात करते हैं. ये अब्दुल्ला शफीक का नॉक है. 54 नॉट आउट हैं. बड़े उम्दा बैटिंग करते हैं. इनके बारे में बहुत जिक्र होता है. टेक्निकली साउंड है, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और बॉल को उसके मेरिट पे खेलते हैं. कंट्रोल में दिखते हैं. उनका कोई भी शॉट ऐसा फॉलिंग ओवर नहीं होता. पुल शॉट खेलें, ऑन दी अप खेलें, स्पिनर्स को डाउन द विकेट अटैक करें. सारे साफ सुथरे क्लीन शॉट्स हैं इनके. अपने आप में जब आते हैं
तो फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाता है और इन्होंने इसकी झलक कई बार दी है। हम बात कर रहे थे कि जब से यंगस्टर्स आए हैं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 181 है, जबकि जब फुल स्क्वाड्स खेल रहे थे, लाहौर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पिंडी की जिक्र नहीं कर रहे, तो 161 एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर था। तो कहीं शायद हमें देखने में लग रहा हो कि गेम्स की पेस थोड़ा स्लो हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। ज़बरदस्त पॉइंट है ये, क्योंकि इससे साबित होता है कि यंगस्टर्स जो हैं बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, खुल के क्रिकेट खेल रहे हैं और ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। मिस फील्डिंग हुई यहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन अच्छा बैकअप किया। इस पे और बात करेंगे हम। 77 एक खिलाड़ी आउट। ये अभी तक की बॉलिंग है जिसमें कामयाबी नोमान को मिली है। वाइस कैप्टन है नोमान, यूजुअली लीड करते हैं नॉर्दर्न को 4 डे में जब और सीनियर्स अवेलेबल ना हो। अच्छा लीड करते हैं, एक्सपीरियंस है। तो हम बात कर रहे थे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स की, तो कम शायद इसलिए भी है कि बड़े ऑपोजिट रिजल्ट्स आए दोपहर और रात के मैचेस में। जब लाहौर में स्टार्ट हुआ यहाँ का लेग तो 128 हुआ फर्स्ट इनिंग में पहले मैच में, दूसरा मैच 211 पे चला गया। फिर अगले दिन जो है 150 के आसपास रहे दोनों मैचेस। आज सुबह का जो मैच था वो भी 150 के लगभग था, लेकिन ये मैच जो है ये इसमें 170-80 स्कोर जा सकता है, क्योंकि आपने देखा कि अब्दुल्ला शफीक के बेहतरीन इनिंग्स है, अभी वो खेल रहे हैं। और इमाम ने भी परसों काफ़ी मेजर्ड इनिंग्स खेली थी। एक मौका था कि मैंने कहा कमेंट्री में कि वो बहुत स्लो खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद रिडीम किया अपने आप को और ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। बहुत ही उम्दा फील्डिंग पॉइंट पर, और ये रनआउट का चांस हो सकता था। फील्डिंग अच्छी थी, रॉन्ग एंड पे फेंक दिया। कीपर रोहेल चाह रहे थे कि उनके एंड पे बॉल आए, उनको लगा कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा उनकी साइड पे है क्योंकि अब्दुल्ला शफीक काफी आगे निकल गए थे। तो इमाम अगर आज भी क्रीज पे खड़े रहे और अब्दुल्ला शफीक ऐसी बैट करते रहे तो मामला नॉर्दर्न के लिए ख़राब हो सकता है। और इस दफ़ा स्वीप किया 4 रन्स के लिए, ज़बरदस्त शॉट अब्दुल्ला शफीक की। इनको खेलते देख के नज़र आता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इनका हर शॉट इतने कंट्रोल में था। ये स्वीप भी किया, मेक श्योर किया कि बल्ले का एंगल नीचे की तरफ रहे, गेंद कोई टॉप एज ना लगे। हर चीज़ का कंट्रोल है इनके शॉट में। प्लान्ड शॉट्स खेलते हैं और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं कहां इन्होंने जाना है बॉल के मेरिट पे। अच्छे टेक्स्ट बुक शॉट्स भी हैं इनके पास। लेंथ चेंज की नोमान ने बाहर आते देख के। सच्ची बात है, मैंने जब इनको पिछले साल देखा तो मुझे लगा कि ये वनडे और टेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन इस साल जब मैंने इनको देखा तो इन्होंने इतना काम किया अपने T20 पे भी, और आज एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहे हैं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं। लो रहा ये गेंद, इसलिए निचला किनारा लगा बैट का और गेंद स्क्वायर के पीछे गई है। तो आपने इमाम का जिक्र किया, तो ये अपने रोल पे खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट रन बॉल। इनको पता है कि मैंने 20 ओवर बैटिंग करनी है और लाइसेंस दिया है अब्दुल्ला शफीक या आने वालों को। और फिर वही बात होती है कि आप अपने आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप गेयर चेंज करते हैं, आप फिर ये रन बॉल को आप आगे ले जाएं। कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां आपको शायद ये दिख जाए 50 रन 37 बॉलें। ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर या जो ज़्यादा अरसा इंटरनेशनल एरिना में गुजार चुका हो वो अंडरस्टैंड करता है कि किसी पर्टिकुलर मैच में रिक्वायरमेंट क्या है। इनको ये मैच जीतने हैं तीनों। इनके पास बहुत ओपन चांस है क्वालिफाई करने का बलूचिस्तान के पास। दे शुडंट थ्रो इट अवे। पैड शायद ज्यादा है, अंपायर का इशारा, देखते हैं क्या है। लेग बाइज 84 एक खिलाड़ी आउट।
सिकंदर, आप बात कर रहे थे कि ये किस तरह कप्तानी कर रहे हैं और रोल अपना इमाम किस तरह देख रहे हैं, और इनको सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं कि नंबर 3 आ रहे हैं, खुद ओपनर हैं। और जो परसों 2 दिन पहले इन्होंने इनिंग्स खेली, 20s में बड़ा स्लो खेल रहे थे, फिर उन्होंने एक्सेलरेट किया, मैन ऑफ द मैच भी हासिल किया और अपना रोल एक बेहतरीन तरीके से पूरा किया। तो ये इस टूर्नामेंट में मुझे एक अच्छे कप्तान की सूरत में नजर आए। फील्ड प्लेसिंग्स भी बड़ी अच्छी है इनकी। डेब्यू पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया था, 4 विकेट्स हासिल की थी आमिर जमाल ने, और आखिर में रोहिल नजीर के साथ शानदार इनिंग्स भी खेली थी। ये चीज ऐसे ऑलराउंड क्रिकेटर्स आपको चाहिए हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा अच्छा गया होगा क्योंकि डेब्यू था इनका। यहाँ पे टोटल जो है वो जहन में 150-160 से ऊपर ही सोचना होगा, क्योंकि जरा मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना। हमने देखा है कल हुआ था डिफेंड टोटल, लेकिन वो गए थे एक बड़ा स्कोर बना के और फिर 45 रन से वो मैच जीता था सिंध ने। लेकिन आप अपने इतने रन्स बोर्ड पे डालें कि बॉलर्स के पास डिफेंड करने में कुछ हो, जब ओस पड़ेगी तो बैटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ, इसलिए ये बेहतर होगा कि ये अगर 175 के अराउंड स्कोर करें, ताकि हम ये ना कह रहे हो कि ये 15 रन शॉर्ट निकले एंड में या 20 रन शॉर्ट। तो ये ओस को भी उसका जो एक वैल्यू है या डी वैल्यू करता है वो बॉलर्स को, उसका भी ख्याल रखना चाहिए और उसके मुताबिक 15-20 रन ज़्यादा बनाने चाहिए। और ये बड़ी अच्छी पोजीशन में इस वक्त बना सकते हैं। 85 पर 1 आउट है, 10 ओवर पड़े। पिकअप शॉट है और इसको सही तरह होल्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन लकी रहे, गेंद करीब थी, ज्यादा दूर नहीं थी फील्डर के माप से। स्लाइटली शॉर्टर लेंथ थी, फौरन इसके ऊपर चढ़ के इसको शॉट खेला है अब्दुल्ला शफीक ने। डीप खड़े हैं क्रीज में, कुछ लम्हे के लिए इनको शायद लगा होगा कहीं ज्यादा ऊंचा तो नहीं खेल दिया, गेंद इतनी चली जाए कि फील्डर को मौका मिल जाए पहुंचने का, लेकिन कैलकुलेटेड शॉट। ये जो एटीट्यूड है इस टूर्नामेंट में यंग बैट्समैन का बड़ा ज़बरदस्त है, चाहे फरहान हो, तैयब हो, अब्दुल्ला शफीक हो, ज़बरदस्त एटीट्यूड है, अटैकिंग एटीट्यूड। फ्लैट बैट और एक ऑन द बाउंस ये गेंद को रोका है अली इमरान ने। गेंद इनको लगी भी है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है डिसाइड करने का कि मैंने इस बॉल को कैच करना है और चांस लेना है कि 4 हो जाए। लेकिन यहां अच्छी परफॉर्मेंस, बॉल को जब हाफ वॉली पर आ गया तो उन्होंने अपनी बॉडी से रोक लिया। जी हाँ, चांस हो सकता था लेकिन कम से कम चौका नहीं जाने दिया, ये भी एक गनीमत है। लेकिन ये एटीट्यूड की मैं बात करी थी, और कल जो तैयब ने एक शॉट लगाई थी हाई एल्बो वाली, 6 रन्स, मज़ा आ गया देख के। मतलब ये यंग बैट्समैन बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और ये बेहतरीन है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, टाइमिंग अच्छी। ये भी एक यंगस्टर है, उम्दा शॉट खेला है, इसका इंतजार किया और स्क्वायर कट कर दिया इमामुल हक ने, आहिस्ता आहिस्ता पेस को अब बढ़ाते हुए। जी हाँ, शानदार शॉट, बैकफुट पे कट किया, 4 रन्स हासिल किए। और आज इनका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा नजर आ रहा है, उस दिन की मैन ऑफ द मैच के बाद, इनिंग्स के बाद, मैच जितवाने के बाद। दो हासिल हो सकते हैं, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप में से, उन्होंने चार्ज किया बॉल पर। 95 पे 1।
बॉलिंग फिगर्स आपके सामने। नुमान की एक विकेट, बाकी कॉलम्स विकेट कॉलम्स खाली अभी तक और विकेट्स की जरूरत। जी आमिर ने, मैं करेक्शन करूं, 3 विकेट्स ली थी 30 रन देके पिछले मैच में, और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। 38 देके 3 ली थी और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बैट के साथ दी थी। रिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप थी रोहेल के साथ, मैच विनिंग पार्टनरशिप। नुमान अली का रोल जो है वो बड़ा सिमिलर है जैसे आसिफ आफरीदी का है। इनकी सीनियरिटी इनको ये एज देती है कि इनको समझ आ जाता है कहां पे अगर विकेट्स नहीं मिल रही तो हम रन रोक दें, और ये इनका एक तरह से रोल भी है, रन्स को रोकना। बड़े क्रूशल मिडिल ओवर्स होते हैं ये। बहुत अक्लमंद बॉलर हैं ये। हाल ही में इन्होंने टेस्ट मैच में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और यहाँ पर इनको T20 में अपना रोल पता है कि इनका क्या रोल है। कंटेन करना है और कंटेन करके फ्रस्ट्रेट करके विकेट हासिल करना इनका रोल है। तो रोल को परफेक्टली समझते हैं ये आसिफ आफरीदी की तरह। कोई एक बॉलर भी अगर अपने नपीतुली लाइन पे गेंद करे और अच्छा स्पेल कर गुजरे, 20-25 रन दे, तो उसने अपने 4 ओवर्स निकाल दिए। आपने ऑपोजिशन को 16 ओवर दिए हैं सिर्फ, कि वो अगर और कुछ कर सकते हैं तो कर लें 20 में से 16। बैटिंग काफी है, अगर ये चाहें तो आगे जाके लॉन्ग हैंडल भी यूज कर सकते हैं, जो एक खास चीज है, बड़ा जिक्र होता है इसका। इनके पास आगे जाके सोहेल अख्तर हैं, अमाद बट है, हारिस सोहेल हैं, उमैद आसिफ भी हैं। अच्छा शॉट खेला है, थोड़ा सा वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। ये प्लेसमेंट्स की सारी बात है जिससे आप अपने रन अर्न करते हो। और आप देखें अभी अपना गियर चेंज कर चुके हैं। जब हमारी लास्ट बात हुई तो इनका 1 चौका था, अब ये इन्होंने उस असना में 4 चौके लगा दिए हैं टोटल। जी 50 रन की पार्टनरशिप और 100 रन टीम के भी मुकम्मल। बेहतरीन शॉट डाउन द विकेट और मजा आया देख के। आज एक और ही मूड में खेल रहे हैं इमाम। ये भी अच्छे मूड में है टपाल टी के साथ। उन्होंने शायद अपने आप को देखा है बिग स्क्रीन पे, तो चाय का घूंट कभी कभार पड़ा हो जाता है। प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, 101, एक खिलाड़ी आउट, 12वां ओवर। यहाँ से यकीनन इनको 180 रन एम करने चाहिए। अगर ये 180 नहीं बनाएंगे तो इनको ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करना चाहिए, क्योंकि इनके पास विकेट भी एक गिरी है, 100 रन भी बन चुके हैं, बैट्समैन दोनों सेट हैं, 50 की पार्टनरशिप हो गई, ज़बरदस्त पोजीशन में है ये। पुश तो कर रहे हैं 2 के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। अच्छा ओवर जा रहा है, अभी तक 7 रन दिए हैं, एक बाउंड्री जरूर लगी है। ये ड्रोन अपनी एंट्री ग्राउंड में देते हुए शानदार शॉट अंदर आते हुए ग्राउंड में। टेक्नोलॉजी का जवाब नहीं। पहले ही रूम बना लिया था अपने लिए अब्दुल्ला शफीक ने, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ये शॉट खेल देंगे थोड़ा सा वाइड ऑफ दैट फील्डर जो कि बाउंड्री राइडर है ऑफ साइड पर। अच्छी इंप्रोवाइजेशन, 106, खिलाड़ी आउट।
106 for 169 for Abdullah Shafiq. In this partnership now 55. Everything's set. You look at 12 and over, you're looking at over 200. And what we've seen of Abdullah Shafiq today is all class. He's played a number of quality shots, maneuvered himself to the leg side to create that opportunity to hit through the offside and get the gap. Nominally disappointed with the length, but good batting. Amir Jamal follows him, and Sohail Tanveer Wali finally gets down to it. A couple of runs stolen. Yeah, that's good running, really good running. Imam just shifting his gears slightly, and Abdullah Shafiq has been in the driving seat from ball one. Northern needs to bring up something out of the bag. He's following it, but he did well at the end to get those 2 runs. Ijaz Jr. Slightly concerned, but he knows that Northern have the batting firepower to chase any total. Down the leg side, wide. You need to be disciplined though. Yes, you can go for runs, but things under your control, you keep them under control. Osaka question of the day. Who has bowled the fastest delivery in the history of Pakistan cricket? Answer this question on www.fb.com/osaka.batteries and get a chance to win exciting prizes. Seen Abdullah Shafiq bat a couple of times, a few times really, and strikes me as a player who won't make ugly runs. Whenever he'll make runs, he'll make them really pretty. Classy player. Yeah, he's a typical batter with a great technique. I've been a huge admirer of him. And he looks really calm and composed. Whenever he tries to force a shot, that's when he mistimes it. Otherwise, it's all cream and class. Smash into the leg side. Does he get the gap? Yes, he does. Another one that disappears for 4. You drop shot, that's what will you get. Abdullah Shafiq, he's taking on everything loose. That was a cracking shot. A desperate effort, but never got a hand on it. 4 runs. .73 now, 43. He's in with a chance of getting 100, but more importantly, he bats for another 5-6 overs and keeps this up. Balochistan will be looking at something near 200. Still prowling. He's looking at gaps in the leg side. It's all in the eyes. The intensity today is in the eyes. Down the ground and gone. The first one is really not timed completely and hits it straight to the fielder. End of a fantastic innings. He'll be disappointed. One too many shots. Wanted to take the fence once again, but this time it was a slow one. The length wasn't right. He went for it, but then a good catch. Just tipping on it. Ali Imran kept his eyes. And that's the wicket Northern was desperately looking. You can see the aggression. Ali Imran with a neat catch. 73 of 44, 114 for 2.
Sohail Akhtar walks in. Can strike a long ball and he needs to just keep this going for Balochistan. Experienced campaigner and he's got powerful wrists. Amir Jamal with pace off the ball. Just didn't time it well enough. Flat and straight to Ali Imran, did really well running across and making sure as he slid that the ball was safely pouched. Missed the triple figure definitely, but nonetheless he proved his mettle. Abdullah Shafiq, yes, there's the disappointment. It was last night where GFS Sindh got 194 and played almost the perfect game and won the game comfortably. Bowled well and caught well, so it can be done when you're batting first in the evening game. It can be done, but you need to be spot on with the execution with the bat and then follow up with the ball and the field. But right now you still think that to be competitive you need to get to as near as 200 as possible. Short ball pulled into the leg side. Call for 2, but no, just a single. 13 done, it's 115 for 2. A couple of overs of Sohail Tanveer. Zaman has a couple of overs, so plenty of options there. But it's all about closing the innings off. Defensive skills at the back end. And right now the job instructed to Musa. Edge, and that flies away. Boundary to third man. Lucky runs once again. Was looking to play over the extra cover, but with the pace of Musa, some thick willow, he earned a boundary nonetheless. Musa has been really expensive. Gave away 16 runs in his first over. He needs to learn quickly and execute better. Interesting how Sohail Akhtar goes about this situation, because he does have power, we know that. He does clear the fence with ease when he wants to, but you look at about, what, 6 overs and 4 deliveries to go. You just start off by teeing off.
and make a difference in the game. Well, it's high risk, but it's probably an innings that Balochistan won. Edge and dropped. The chance there went quickly to the keeper, Rohil Nazir, but I think he should have taken that. He'd be disappointed with that effort. Yeah, he's better than that. He went quickly, but it dropped even quicker. Just wanted to cut it. Very fine edge. Got a hand on it, but unlucky for him. He has to go. Suhail Akhtar with the need to post a decent total against a very strong power hitting side of Northern. And the boundary of the first ball and just 3 singles, so 7 of the first 4 deliveries. And you got to look at a couple of boundaries per over. You got to look at least 10 and over, and maybe in between a couple of big overs. Yes, it's a big demand, but chasing is the option here in Gaddafi Stadium, Lahore. If this man had stayed on, maybe we'd see the increase in that current run rate even more. But now it's up to captain himself to entertain the crowd, and Suhail Akhtar. They've tried 3 times to get a couple of runs when they've hit it to the fence, but they fail every time. There's a lot of buzz in the middle, but that's good intention. Trying to push for double, keeping fielders in check. I think it's a good platform for Suhail Akhtar as well, because they've got Ahmad Bhatt and Umaid Asif in the dugout. They too can go big. They need to capitalize on this situation. Pulled into the gap. Good end to the over. Nicely timed. Boundary. And it's 127 for 2. Off the 14th, and it's just cut to the stage. 36 deliveries remaining that you have to go for everything. 15 and over, 217. What are you looking at? Maybe 11 and over, 193. But still, you need to give yourself a bit of insurance, because you've seen that there's a bit of dew formation in the second innings, and the rags do come out. Down the leg side, wide. Not a good start, but yes, he will play some role. But again, I think that Suhail Akhtar has a huge role to play here. Probably Imam would love to go deeper into the innings, just keep holding that one end, and from the other end, the big power guys like Suhail, Imad and Umaid can take off. Leg side, no timing. He's trying to give some room. Followed him, Musa, but with that pace and that length and the form Imamul Haq is in, that was a certain boundary.
mid-off in the circle, fine leg in the circle. So 2 opportunities to get a boundary. He tries to come down the track, but no length provided. Tucked him up. At this stage of the game, you're always looking for that boundary option and target those areas. Well, Sohail Akhtar is very strong leg side. He likes the cut shot, and that's about his power areas. Any width, I think he's definitely favoring that cut shot. But if you're going to bowl full, then it's going to go aerial. Missed out the opportunity there. Fine leg in the circle. Any sort of bat on that would have raced away. You need to be wary of these type of opportunities. He likes to do that, Sohail Akhtar, just shuffling a little towards offside and then bringing his powerful wrist into the play. It was perfectly set almost, but missed out big time. Side screen problems, as always. Faisal Khan Afridi just pointing out that they're not blocking the side screen. They're to the side, but Imam insistent that either they should sit down or move away. Were you this sort of fussy batter? I would never be on the pitch so long that I would notice the side screen. Poor delivery down the leg side, helps on its way. Imam picks up an easy boundary. Northern still struggling to find the right line and length. Again, just dragging down leg side. It was a slow one, but has to be in the right areas. It's easy picking for Imam. Not amused. .48 of 34, Imam ul Haq. Again down the leg side, misses out. Any bat on that, then that would have raced away too. Troubles for Northern. But if you have a look at the paces going for runs, the economy is almost above 8. And I'm talking about more or less of all teams. But Northern right now are leaking a lot of runs. That isn't a good sign, especially Balochistan with those rags out straight away. I mean, making sure that the ball is as dry as possible. So all indications here that there's quite a bit of dew. And when it comes to defending with the ball, that becomes a problem. Misfield, but won't cost them anything. Recovered well. 138 for 2.
Last 5 overs remaining. And if they got 11 and over, it's 193. I've just got a stat that the last 5 overs, Balochistan in the National T20 Cup have gone at 9.15. So we're looking at, what, 185. And if they get to 185 after the start that they got, they wouldn't be half pleased. Imam Haq is getting everything sorted. He's a bit of a perfectionist as a batsman. He likes the side screen clear. He likes everything to be in order. And for that to happen, you need a bit of time. I reckon a lot of time. Mahbad already padded up. Maybe he'll see him next. Right now it's Sohail Tanveer back in the attack. Shot thumped. Doesn't go all the way. One bounce to the fence. Sohail Akhtar doing what he does best, picked up the right area. Mid-off was inside the circle. And with a flat bat, he cleared that for a boundary. Just very short from Sohail Tanveer. Nothing delivery really. Sohail Akhtar well aware that mid-off was in the circle, so he made sure that he flat batted it straight. Leg side. That'll go to the fence as well. Boundaries coming from both sides of wicket. This time it's leg side. Erring a bit straight. This time Sohail Akhtar just finding some willow on it. And Sohail Tanveer again will have to pay. Another boundary back to back. Change in field. Third man in the circle, long off, drops back. Pace off the ball. Well, if you give pace, that is the result. Third man was in the circle, so easy pickings. He likes the cut shot. 150 up for Balochistan. 3 consecutive boundaries. Sohail Akhtar moves on to 16. He just got that fielder in. And the length wasn't spot on. But smartly played by Sohail Akhtar, just opening the face of the bat on the last moment. Another boundary. Third man and fine leg in the circle. You can't afford to give any width or any sort of pace. Shot pulled away. Hasn't got any of it. Straight to the man. Zaman Khan takes a good catch. Sohail Akhtar gone. Third wicket. Balochistan have lost. Ending the misery this time. It was there to be hit, but found the bottom of the bat, probably top of the bat, and no mistake there. And finally some relief for Sohail Tanveer. Balochistan 150 for 3 now. Sohail Akhtar 16. It's 3 down for 150.
Ahmad Butt gets a promotion, and we know exactly why, because he's going to try and hit the ball out of the park. Strike rate says it all. Dot ball from Sohail Tanveer. Got hit for 3 boundaries and then got his revenge. Shot thrashed over the offside, and went leg side, nicely tickled away. Cut shot timed to the offside fence, and then the pull shot high on the bat. Good catch. For Imam Haq. Consecutive half centuries for him of 37 deliveries. 16 overs done. It's 151 for 3. अभी 150 मुकम्मल कर लिए हैं 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो यहाँ से 4 ओवर्स और बाकी, जिसमें 24 गेंदों का पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि इमाम और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी पार्टनरशिप करके ये पोजीशन दिलवा दी। इवन आप सोहेल अख्तर की भी जो कैमियो था उसकी आप दाद देंगे, क्योंकि यहाँ से यही हिकमत अमली चाहिए। बड़ा टोटल हासिल करना है। 3 बॉलों पे 12 रन हासिल किए, फिर वो आउट हुए। रन रेट को ले गए ऑलमोस्ट 9.3 पे। जी, इस वक्त हम कह सकते हैं कि सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश की है नॉर्दर्न ने। जिस तरह की बैटिंग हो रही थी, 114 रन पर एक ही खिलाड़ी आउट था। अब्दुल्ला शफीक अपनी सेंचुरी की तरफ जा रहे थे। खेला है, फील्डर 2 आए। मिड ऑन से अली इमरान थे, लेकिन कप्तान उमर अमीन जो मिड ऑफ से भागते हुए आए, उन्होंने कैच आकर लिया। इमामुल हक को वापस जाना होगा पवेलियन। अच्छी बैटिंग की उन्होंने, 50 रन की इनिंग्स खेली। ये देखिए, चिप करने की कोशिश की थी, हालांकि फील्डर बाउंड्री पर थे। शॉट कमजोर इतना साबित हुआ कि उमर अमीन को जो दायरे से दौड़े थे, जाकर गेंद कलेक्ट करने का मौका मिला तो विकेट मिल गई यहां जमान खान को। इमामुल हक ने 50 रन बनाए, 151 पर 4। बलोचिस्तान के पास विकेटें हाथ में हैं, लेकिन 2 इस वक्त नए बैटर हैं मैदान में। अहमद और हारिस दोनों ने एक भी गेंद नहीं खेली। यहाँ से अच्छा फिनिश करना जरूरी होगा। इमामुल हक जो है, ये देखिए, लेग साइड में खेलना चाहते थे। ज्यादा इनका इरादा था मिड विकेट की तरफ खेलने का, लेकिन गेंद बमुश्किल दायरे के बाहर पहुंच पाई। अली इमरान ने आखिर में अक्लमंदी का मुजाहरा किया, हट गए।
यहाँ ज्यादा परेशानी मुझे जमान खान के फॉलो थ्रू की है। इस ओवर में 4 बार ये इन्होंने ऑलमोस्ट गिरे हैं, 2 बार गिर चुके हैं, 2 बार ऑलमोस्ट बैलेंस खोया है इन्होंने। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इनके पिछले मैच में भी यही है। और ये इंजरी का शिकार भी हो सकते क्योंकि एक फास्ट बॉलर एक ट्रेन की तरह है और ट्रेन फौरन नहीं रुकती। आप जो अपने आप को एकदम ब्रेक लगा देंगे एक डिलीवरी के बाद तो आपने ऑब्वियसली बैलेंस खोना है और ये हर बार गिर जाते हैं। लेग साइड में खेला, गेंद गैप में चली है 4 रन के लिए। मूसा थे स्क्वायर लेग पर, मिड विकेट पर मुबस्सिर, लेकिन दोनों को बाइसेक्ट किया। अच्छा आगाज किया अपनी इनिंग्स का अम्माद भट्ट ने ये फ्लिक शॉट खेल के। स्लिंगिंग एक्शन है, बॉल स्किड होता है, अच्छा कलाई का इस्तेमाल किया, पेस भी है जबान के पास। लेंथ ऐसी थी कि इसको उन्होंने उम्दगी से खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। बोल्ड कर दिया। इस बार गेंद को कट करने के लिए गए अम्माद भट्ट, लेकिन अपनी स्टंप्स पर खेल गए। विकेट मिल गई जमान को इस ओवर में दूसरी। अम्माद भट्ट का ये टूर्नामेंट बैट के साथ कुछ इतना अच्छा नहीं जा रहा। जो इनका टैलेंट और इनकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से ये इस बार नहीं डिलीवर कर पा रहे। और इस बार इनसाइड एज लगा, प्ले डाउन कर बैठे, लेजी सा शॉट था और इस तरह से कामयाबी एक और हासिल हो गई। यहाँ भी थोड़ा सा इनको नेगेटिव है सिनारियो बलूचिस्तान के लिए जब अम्माद परफॉर्म नहीं कर पाते। 156 पे 5। हल्की हल्की धुंध के आसार हैं इस वक्त फजा में। बलूचिस्तान की बैटिंग पर भी ये आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर ये रन हासिल किया। 7वां ओवर मुकम्मल होने पर बलूचिस्तान ने बनाए हैं 157। रात की तारीकी में धुंध के भी आसार हैं जो कि ज्यादा वाजे हो रहे हैं इन फ्लड लाइट्स की रोशनियों के सामने। और पुल किया जोरदार तरीके से और गेंद बाउंड्री के बाहर जा पड़ी। उमैद आसिफ बल्ले के साथ सुप्रीम फॉर्म में है। पिछले मैच में भी इन्होंने बड़ी ऐसी धुआंधार बैटिंग की थी और आते ही सोहेल तनवीर को अपनी आमद का बता दिया। सोहेल तनवीर बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। उनका आखिरी ओवर है। पिछले ओवर में विकेट जरूर ली थी सोहेल अख्तर की जो पुल करने के लिए गए थे, लेकिन उमैद आसिफ बड़ी अच्छी हिटिंग फॉर्म में। इन दिनों अम्माद भट्ट से भी ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 147 का स्ट्राइक रेट ये इस बात को साबित करता है। अंडररेटेड ये हिटर हैं। ओवरऑल ही मैं कहूंगा इवन एज अ बॉलर भी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी हैं। पीएसएल में भी, नेशनल T20 डोमेस्टिक सर्किट में भी। इस बार सिंगल ही मिलेगा, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में आप गो टू मैन है किसी कप्तान के, आप इनको यूज कर सकते हैं ऑफ कोर्स एज अ बॉलर भी। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम में, और ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि गद्दाफी स्टेडियम में नेशनल T20 की अगर बात करें फर्स्ट इनिंग्स जो टोटल है वो एवरेज है 170।
और जो फुल स्क्वाड खेल रहे थे उस वक्त 160 या 62 के करीब था, और अब जब ये टीम्स आई हैं यंगस्टर्स के साथ तो 181 पे पहुंचा हुआ है एवरेज फर्स्ट इनिंग। यहाँ इस साल 170 रहा है औसत स्कोर रावलपिंडी में इससे निस्बतन कम था। ये पहला मरहला था उसमें तो मुश्किल 150 रहा। गेंद टर्न हो रही थी, अच्छी चैलेंजिंग पिचेस थी, लेकिन कजाफी स्टेडियम में हमेशा रन्स बनते हैं, खास तौर पर ये जो शाम के मैचेस होते हैं इसमें बैट्समैनों का पलड़ा भारी रहता है। वही हम देख रहे हैं आज भी। काशिफ भट्टी ये भी अच्छे स्ट्राइकर हैं, उनके साथ मोहम्मद मोहसिन जो आज नहीं खेल रहे। फाइन लेग को आगे लाया गया, स्क्वायर लेग को पीछे सरकाया गया और मिड विकेट को भी, और खेला है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान। दूसरे रन के लिए लौट रहे हैं इस वक्त। एक बार फिर अच्छी बैटिंग, विकेट के दरमियान लंबे लंबे डग भरते हैं, दौड़ भी लेते हैं। हालांकि फास्ट बॉलर से ऐसी उम्मीद अब कम करते हैं इतनी तो तेज दौड़ लगाने की। लंबे कदम हैं इनके। ये विकेट है मात बट की, बॉडी से दूर बैट ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को इनसाइड एज के बाद उनको अब ये लॉन्ग वॉक लेनी पड़ेगी। कभी कभार आप जब फॉर्म में नहीं होते, आपके लिए कोई चीज सही नहीं जा रही होती, आप वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं, इसमें आपकी सपोर्ट स्टाफ हेल्प करता है। शानदार शॉट, अच्छी आवाज आई है और गेंद गई अली इमरान से बाला बाला। दूसरा छक्का उमैद आसिफ का। एक बार फिर ज्यादा तेज गेंद नहीं थी और इस बार सामने हिट करने में कामयाब हुए। ये देखिए बल्ले को पकड़ा भी कहां से है इन्होंने, बिल्कुल टॉप ऑफ द हैंडल से, तो और ज्यादा रीच हो जाती है। कद तो वैसे है ही लंबा इनका। इन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि जितना ज्यादा मैं बॉल को पहले ही मिल लूं उतना अच्छा है। बिल्कुल हैंडल को एज से पकड़े हुए हैं, खुद की उनकी हाइट 6.5 फीट से ज्यादा है, तो फिर लेंथ भी उस हिसाब से सोहेल तनवीर को एडजस्ट करनी पड़ेगी। 16 रन इस ओवर में दे चुके हैं सोहेल तनवीर। क्या एक बार फिर बाउंड्री पर खत्म कर सकेंगे इस ओवर को? अभी ये ओवर जारी रहेगा। आइडिया सही था, निशाना से चूक गए। स्लो बॉल की कोशिश की थी, ये देखते हुए कि उम्मीद सिर्फ बड़ी हिट्स के लिए है, जा रहे हैं। एक घंटा और 38 मिनट हो चुके हैं इस इनिंग्स को शुरू हुए। हम बात करेंगे आगे चलकर इस पे 85 मिनट में आपने, क्योंकि तयशुदा वक्त वही होता है, उसमें कुछ अलाउंस मिलता है फील्डिंग टीम को। अच्छा हुआ मैच रेफरी नहीं, आप बहुत सख्त होते। 2 की कोशिश है लेकिन मिलेगा 1 ही। ओवर मुकम्मल हो गया, 175, 5 आउट। शानदार इनिंग्स शफीक की। अब्दुल्ला शफीक 73 44 गेंदों पे, फिर इमामुल हक ने दूसरी लगातार सेंचुरी बनाई बैक टू बैक मैचेस में। 16 की अच्छी इनिंग्स खेली 9 गेंदों पर, जो रिक्वायरमेंट थी उस स्टेज पे। ओह शानदार बॉल, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, और एक बार फिर अपने फॉलो थ्रू में गिरे हैं जमान, लेकिन गेंद बहुत अच्छा था। जी हाँ, खुद बॉलिंग क्रीज के सामने गिरे और बैट्समैन की विकेट गिराई बैटिंग क्रीज के पीछे। एजाज जूनियर जाहिर है इस बॉलिंग एक्शन और गिरने के अंदाज से खुश नहीं थे, लेकिन बैट्समैन को इस बार मुंह की खाना पड़ी। अच्छा यॉर्कर
बिल्कुल परफेक्ट गेंद सीधी जाकर गिरी बैट्समैन के पैरों के करीब। 17 रन जुमैद ने बनाए। अच्छी इनिंग खेलने के बाद वो वापस आ रहे हैं। 175, 6 खिलाड़ी आउट। इस बार खूबसूरती के साथ पिक किया 4 रन के लिए या फिर बाउंड्री के बाहर। जी हां, ये छक्का लगाया है। ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की। काशिफ भट्टी ने क्रीज पर पहुंचते ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ये होती है T20 की बैटिंग। आपके पास टाइम नहीं होता। आपको पता है कि आपने आना है, यहाँ कोई आंख वांख सेट नहीं करनी है। आपने अपने बल्ले को घुमाना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसी गेंद पर जो लेग स्टंप से जा रही है तो उसकी हेल्प कीजिए और उसको भेज दीजिए बाहर रोक के। खराब गेंद था, सबसे बेहतरीन यॉर्कर के बाद ये। काशिफ भट्टी 34 इनका बेहतरीन स्कोर है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं। ये अपने जमान को हमने देखा है काफी बार, जो इनका ये फॉलो थ्रू है। विकेट लेते हैं, ये जोर लगाते हैं पूरा, लेकिन आप इनको देखें ये ब्रेक्स फौरन लगा देते हैं, अपने आप को मौका नहीं देते आगे जाने का, इनका बैलेंस खो देते हैं। इनके जो कोच थे उसने भी इस चीज़ को उन्होंने नोटिस किया है। ये इनके लिए इंजरी का बायस हो सकता है और ये कभी कभार नहीं, ये एक ओवर में 5 बार ऐसा ही होता है। ये फौरन ब्रेक्स लगाना अपनी बॉडी पे, अपने पैरों पे, अपने टोज पे। एक बार फिर गिरे। देखिए काफी लो आर्म रहता है जिस वक्त ये गेंद को डिलीवर करते हैं और ये बुरी तरह ये बाएं तरफ टिल्ट कर जाती है इनकी बॉडी जो है जिस वक्त अपना दायां हाथ जो फिनिश करते हैं। तो ऐसे एक्शन के साथ तवाज़ुन जो है मुश्किल होता है। बैट्समैन की तरह बॉलर को भी बॉलिंग क्रीज में तवाज़ुन रखना ज़रूरी होता है। अभी अरशद नदीम जो है ओलंपिक्स में गए थे, जेवेलियन जो थ्रो कर रहे थे, तो जो ऐसे एथलीट होते हैं वो भी गिर जाते हैं जब वो थ्रो फेंकते हैं उसके बाद। हाँ, वो अलग स्पोर्ट है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि वही जो पूरा ये रन अप से अपना मोमेंटम गेन करते हैं, गेन करने के बाद ये अपनी बॉडी को, अपने आप को अलाउ नहीं करते कि स्लोली स्लो डाउन करें। ये हर बार गिर रहे हैं पिच पर और ये इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये अपने लिए इंजरी पैदा कर सकते हैं बहुत जल्द। ओवर मुकम्मल, 19 ओवर्स के बाद 182, 6 आउट। सोहेल तनवीर और जमान ने अपने 4-4 ओवर मुकम्मल किए। मोहम्मद मूसा से 1 ओवर कराया जा सकता है, वही इस वक्त कोशिश होगी कप्तान की। ये कज़ाफी स्टेडियम का ग्राउंड स्टाफ है, खासी मेहनत की है इन्होंने।
क्योंकि हर रोज़ 2 मैचेस कराना ये आसान नहीं होता इस तरह के सख्त गर्म मौसम में। सख्त और गर्म का आपने जिक्र किया, मैं अभी देख रहा था, हमने जब अपना ड्रोन शॉट दिखाया, खासी फॉग थी, आपने जिक्र किया था फॉग का भी। क्या ये सर्दी की आमद का ये कोई निशानदगी है या क्योंकि फॉग बहुत होती है, क्या आहिस्ता आहिस्ता अब ये लग रहा है कि मौसम तब्दील होगा? देखिए अभी तो दर्जा हरारत जो है वो 35-36 से नीचे नहीं आ रहा, लेकिन स्मॉग आ रही है। फॉग की बजाय स्मॉग आ जाती है। ये पहले नवंबर में आती थी, पिछले 1-2 बरस से हम देख रहे हैं ये अक्टूबर में ही आना शुरू हो जाती है। ये आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी जिससे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकेट का मौका है। इस बार स्लो डिलीवरी थी और ये बड़ा ही आसान सा कैच दे बैठे, आमिर आए थे गेंद के नीचे। जी हाँ, स्लोअर बॉल था तो उसको सही तरह से डील नहीं कर पाए, जल्दी आ गए शॉट में और बल्ला रुक गया। अच्छा और आसान कैच पॉइंट पर अजमत का और मूसा को कामयाबी हासिल हो गई पहली। 183 पे 7वीं विकेट, हारे सोहेल आउट हुए 1 बनाकर। रन में अब तक 5 विकेटें गिरी हैं। पिछले जो आखिरी 33 रन बने हैं इसमें, और 200 का जो हदफ था बलूचिस्तान की टीम इससे पीछे रह गई है। ये देखिए मूसा ने एक बार फिर आहिस्ता गेंद की और शॉट अपना रोक लिया, एक हाथ भी हैंडल से अलग हो गया था। ये हारिस सोहेल का रोल क्या था इस मौके पर? इनको भेजा जाना, सीनियर क्रिकेटर हैं, नायब कप्तान भी हैं इस टीम में। उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, पिंच हिटर भी आउट हो चुके थे, उमैद आसिफ भी जा चुके हैं, काशिफ दूसरे एंड पर हैं। अभी आखिरी 3 गेंदें जो हैं इसमें अगर 1-2 बड़ी हिट्स लग जाएं और 190 के आंकड़े में आ जाए ये टीम तो अच्छा टोटल है। फिर बाकी आप छोड़िए बॉलर्स पे, थोड़ा सा कुछ कल की जो GFS सिंध की बॉलिंग थी उससे कुछ सीख कर अगर आज बलूचिस्तान बॉलिंग कर ले तो इस टूर्नामेंट में अपनी एग्जिस्टेंस रख सकता है और सेमीफाइनल की बर्थ के लिए उम्मीद जो है वो जारी रख सकता है। ये बगी ऑपरेटर्स हैं जो आपको पवेलियन के सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये पहला मौका पाकिस्तान में जब डोमेस्टिक क्रिकेट में बगी इस्तेमाल हो रहा है। बड़े खूबसूरत मनाजिर की फिल्म बंदी इससे की जा रही है, अक्स बंदी, और ये तस्वीर मुख्तलिफ मुनफरिद जावियों से आप तक पहुंच रही हैं इस कैमरे के जरिए। मरीना इकबाल भी लगता है ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। कल आपकी क्लास है 3:30 से 3:45 तक। आप चला पाएंगे इसे? शौक रखते हैं आप? सीखना चाहिए नई नई चीजें। बहुत मुश्किल काम है। हाँ ये है, इसको कहीं टकराना नहीं चाहिए इसे। फुल टॉस पर लिया, रन एक ही हासिल कर सके, ये बेहतर ओवर रहा। मूसा ने कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की, विकेट भी हासिल की और सिर्फ 3 रन उन्होंने दिए। इस तरह बलूचिस्तान की टीम 185 रन बना सकी
उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए और आखिरी 5 ओवर्स में उन्होंने 47 रन बनाए। 5 विकेटें ली नॉर्दर्न के बॉलर्स ने, इसलिए इन्होंने ख़त्म अच्छा किया है इस इनिंग्स को। हालांकि अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह उठान दी थी बलूचिस्तान को, शुरू में लगता था कि 200 से आगे निकल जाएंगे, लेकिन फाइट बैक किया यहाँ पर नॉर्दर्न के बॉलर्स ने। अब्दुल्ला शफीक ने जिम्मेदारी के साथ खेला, 73 बनाए 44 गेंदों पर और हाई स्कोर रहे इस बैटिंग कार्ड में। इमामुल हक की खासियत ये कि उन्होंने भी एक बहुत जिम्मेदाराना कप्तान की इनिंग्स खेली, लगातार 2 सेंचुरियां इस टूर्नामेंट में, और उन्होंने एक एंकर का रोल किया इस पार्टनरशिप में। सोहेल अख्तर की जब आमद हुई तो उस वक्त से इन्होंने फिर अपना रोल सबने डिफाइन कर लिया था। 16-9 गेंदों पे बड़े बड़े शॉट्स लगाने का टाइम आ गया था। उमैद आसिफ ने भी वही किया, 17 बनाए 7 गेंदों पे। काशिफ भट्टी ने आते एक छक्का लगाया, 9 बना लिए 8 गेंदों पे। तो उसके बाद सोहेल अख्तर से लेके नजीबुल्लाह तक सब बैट्समैन का यही रोल नजर आ रहा था कि जाएं और बड़े शॉट्स लगाएं। सोहेल तनवीर ने एक बार फिर बहुत ज्यादा रन दिए और 12 की इकॉनमी उनकी रही। जमान ने 4 ओवर्स किए, अच्छी बॉलिंग की, 15 डॉट बॉल्स, 31 रन और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एक विकेट मूसा और नौमान को मिली। इस तरह ये जो बॉलिंग कारकर्दगी है ये कदरे तसल्ली बख्श है इस पिच के एतबार से और कंडीशंस के ज़िम्न में। तो अब चलते हैं मरीना इकबाल के पास जो एक खास मेहमान के साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, ज़बरदस्त इनिंग्स खेली आज, क्लासिक इनिंग्स लगी आपके, 73 रन बनाए। शुरू में जब गए थोड़ा सा मिस हिट हो रहा था, फिर क्या चेंज किया आपने? जी बिल्कुल, शुरू में जब स्टार्ट में गए तो विकेट को देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट साथ साथ उसके एडजस्ट होते गए और साथ साथ काफ़ी पता चलता गया विकेट का, तो फिर उस हिसाब से प्लान किया मैंने। पिंडी और यहाँ की विकेट्स में क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? इधर थोड़ा काफ़ी स्लो पिच है, थोड़ा सा बॉल रुक के आता है, उसकी निस्बत उधर अच्छा बॉल आता था। और ये थोड़ा, लेकिन ये एडजस्ट करने की देर है और एज अ प्रोफेशनल आपको एडजस्ट करना है कि जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह का आपको खेलना है। आज लंबी इनिंग्स खेली, स्टार्ट्स मिलते रहे, आज कहाँ पे आके थोड़ा अपने आप को रिमाइंड कराया कि लंबा जाना है? जी बिल्कुल, पीछे भी मैचेस जो खेला हूँ तो उसमें काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिल रहा था, बट उसको कैपिटलाइज नहीं था कर पा रहा मैं, तो कोशिश किया इधर वही करूँ और मैं उसमें ठीक रहा। अब थोड़ी ड्यू ज़्यादा होने लग गई है, तो आपको लगता है ये टारगेट काफ़ी होगा बॉलर्स के लिए? नहीं, फाइटिंग गेम होगी, बट ये है कि जो विकेट है वो थोड़ी स्लो है, वो हमें थोड़ा मदद दे सकती है, लेकिन आई थिंक सो स्कोर 200 होना चाहिए था, बट इट्स स्टिल अ गेम एंड वी विल फाइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और वेल प्लेड। थैंक यू। बलूचिस्तान की टीम 185 रन बना सकी और 186 की जरूरत है नॉर्दर्न को। क्या वो इस हदफ तक पहुंच सकेंगे, इसका जवाब मिलेगा आपको एक वक्फे के बाद।
Welcome back. We are halfway through match number 26. Let's just have a look back at what Balochistan did. And it was all really about Shafiq at the top. He played superbly, 73 off 44 balls. Aman Haq 50 off 39, so good performance from both of those guys. Shafiq really lit up this stadium. He was quite extraordinary the way he played. Akhtar got to 16, Ahmed 17, a couple of lusty blows, a little cameo there, 7 balls. And in the end, 20 overs, 185 for 7. They just scored 3 runs, actually, off the last over. So I hope that doesn't bite them in the end. Right, let's have a look at some of the highlights. 2 openers, of course, Shafiq and Balochistan. Both of them have scored some runs so far. Balochistan got away nice and early, but there was some quite extraordinary play. In fact, it was Shafiq. Quite extraordinary play from Shafiq in particular. Balochistan was the first to go. He scored just 4 runs in a stand of 51. So that was quite extraordinary. 51 for 1 when he departed. And then it was Aman Haq who joined him. And they enjoyed their time. Shafiq played quite superbly. Lots of boundaries. Aman Haq also a couple over the top, back of the square on the offside. That was a terrific blow. This guy's a really talented cricketer. He's 21 years of age. Aman Haq benefit, I think, from Rafiq also being down there, Shafiq I should say, and scoring the runs. Backing away, over the top of covers, 4 runs. Smashing that one, strong on the onside. Hard down the ground as well, and then he was caught. 73, 44 balls, scored 54 runs in boundaries, 12 fours and 1 6. That's how well he played. Aman Haq then continued. And runs were scored quite well for a while here. It was quite a nice little performance from these guys. And my butt was also providing some assistance. And then in the end, he was out. Caught by Zaman Khan, 156 for 5. A little bit of a interference, perhaps. Perhaps it was going to be a mix-up, but no, in the end it was okay. And then it was a matter of just chipping away and just getting a few runs. There was a chop on that was very frustrating. Zaman Khan at this stage got himself into the game. This was Ahmed, a couple of lusty blows, 7 balls he lasted, and these are very important runs, I thought. And Zaman Khan rolled over himself, but he disturbed the furniture. 175 when he went. Harris Ahale was also there, just chipped one in the cover region. And he was dismissed off the bowling of Musa Khan. 186 for 6. And in the end, that's where they finished. So 185 for 7 is where they finished in that performance. If we look at the bowling figures, Zaman Khan 4 overs, 3 for 31, so good work from him. Tanveer was on the expensive side. Naman 4 overs, 1 for 28, had to bowl on the power play as well, so he did a very good job with an economy rate of just the 7 mark. And Jamal 3 overs, 1 for 30, got a bit of tap, but all in all it wasn't a bad performance by Northern, I guess. They're missing some key players, obviously, and that is something that doesn't help them. Balochistan aren't missing any guys, so they've got a bit of a bonus going into this game. And as I said, it is match number 26. So that total is an interesting one. Conditions are going to be a little bit troublesome, there's no doubt, for Balochistan. There's going to be some dew around the place. There's a bit of a fog that's come in already, so that indicates that the dew is going to be heavy. And the players are going to have their work cut out, I think, to keep this ball nice and dry and work on it. Some ball management's going to be key. Right, Alina, what are your thoughts? I think it's a good score, 185. Because Northern, as you said, they're missing a few players. Heather Ali also not in the side. Imad, Nawaz, Shadab, all of them missing. So this is a good score, I think. They shouldn't let the Northern side get up to a good start and get a few wickets, and I think Balochistan could be on their way to another victory. Here the openers, Ali Imran, excellent strike rate, 141, and not bad average, close to 28 runs. And Balochistan has a good bowling side. Umaid Asif, Junaid, very experienced. And I think Imam's captained the side really well. He's played well with a bat lately, the last couple of games.
and he's looked positive as a captain. Yeah, I want to see how he goes about this, because yeah, there's no doubt with runs under his belt, it's going to be an improved performance from a captaincy point of view. You can see straight away he's more energetic. He's got even more tape, I think, on those fingers, if that's at all possible. But he's going to have his work cut out here, and he's going to have to work especially hard with the judo in the place. There we go. There's all the tape. Yeah, what about some blue gloves? That might be a better option. What have we got? 5 fingers? Oh, he can still whistle? No, he can't whistle. He can't whistle with the tape on it. Didn't think he could. Well, that might be a bit of a problem. That's extraordinary. Right, let's go. Let's see how they go. It is going to be Junaid Khan. He's going to be starting proceedings. He's a very experienced cricketer. We know that. Wide, pitched up and hit over the top of covers. Only 2 men outside the circle. And that's running away towards the boundary. Good tag teamwork. And that's good effort in the field, because only 2 runs. Should have been 3, but I felt the batsman thought they were going to get a boundary, but they could have run 3. But excellent effort. Good fielding. Could have been, or should have been, 3 runs actually. But well, this is what they got to do, Hazy. They got to be positive, the northern batters, and keep getting runs. But Junaid Khan is very experienced customer. He's been taking wickets in this tournament also. Yeah, I reckon they missed a run there. That's a wide, and that slipped out of the keeper's glove. So let's just keep an eye on this, because that ball, that first shot through the covers, over the top of the covers, travelled all along the grass. So if the grass is wet, the ball is already bound to be getting a little bit on the wet side. Mind you, the lacquer, I suppose, is still quite good on that ball. What's going to happen when the ball does get a little bit wet? That seam is not going to grip. If the seam gets wet, the seam's just going to hit the pitch, and it's going to skid rather than grip. So it should not deviate at all. It should just skid on to the bat if the batsmen are in tune with it. Oh, over the top, and that's 4 runs. Junaid hasn't bowled that well up till now in the first couple of balls. This one nicely played over mid-off's head for 4 runs. Good intent shown by the northern batsman. That's the way you can chase 185, which is a pretty good total here, I feel. He knew that wasn't too far away. Junaid. Allows that to go through, and a wide is called. Slightly off color, Junaid, in the first over, but generally he's bowled well in this tournament. He's taken wickets, not given many runs, given control to his captain. He's the premier bowler. Whenever he's played for Pakistan, most of the times he's done well. So he's someone who's a seasoned bowler, a seasoned customer. Just a little bit off the boil, though, in this tournament. He's on the expensive side in this edition. A little bit short, but straight to the man in mid-wicket. I'll repeat what I have been saying throughout this tournament about this due. Now, this due is going to be, I think, quite a deal later. At the moment, it's fine. You can see the players are not using the rag. They're just catching the ball and throwing it back to the bowler. The players these days are very good at ball management. They will try and keep it off the grass as much as they possibly can. And they are used to it as well. I mean, it's part and parcel of the game these days, so they're used to doing it from time to time. That's cracked through the covers for 4, so this is an expensive start. Yeah, not a great start by Junaid, who's been quite expensive, but he's also managed to pick up wickets, and this is what he's done in this tournament. Beautifully played, didn't move the feet too much, but nice hand-eye coordination and through the cover region. So he can be expensive provided he picks up a couple of wickets, but he has to make a comeback, redeem himself.
captain's busy having a chat, trying to come up with another plan now. They just want to try and protect the boundary. Only 2 allowed outside in the first 6, so he's pushing out a deep mid-wicket. The man at fine leg is coming in. There's the swap. So a man on the offside, backward a square, and a man at deep mid-wicket are the 2 men. Slips out as well. He's now going to go to a standard mid-wicket position, just a little bit straighter. It's still 2 balls to go to finish the over. It's a long one. 12 from it so far. Short ball. Hits it straight to that man, so just the single. So Junaid's a leading wicket taker for Balochistan, but he hasn't done that as yet. And this over he's been very expensive. But with the record he has, I mean, he can pick up wickets. 10 already in this tournament. Now the slip has gone back in. So the only change is the mid-wicket has gone from that position to the slip position. It's a long over. 2 wides, a lengthy over. And that's a dot ball to finish eventually that over. First over gone, 13 for no loss. So there's a look at the Northern batting. Who are the guys to rely on now? Amin, nearly 3,000 runs. Sohail Tanvir, 369 for almost 2,500 runs. Levi, 501. Ali Imran. Nazir, 296. So there's not a great host of batsmen there that have got track records that can be relied upon. There's some pretty good strike rates around the place. Najibullah. Oh, it's a no ball, overstepping. A little bit of swing though, in swing. Now I'm just going to get on my high horse a little bit here. That first over from Junaid Khan took 6 minutes. There's confirmation of that no ball. 6 minutes for that's just not good enough. Junaid cannot be allowed to bowl an over for 6 minutes. Yes, there was 2 wides. The captain's got to be far more proactive, and the umpires have got to be far more proactive. This is T20 cricket. It can't happen. And here we go. Straight away, the captain already has decided to try and just. You can't actually move anyone. In actual fact, he can, because they did cross. But he's taking his time moving and chatting to the bowler. So it's a free hit. It's picked that up nicely. Has it gone all the way? I think it has. It's got the big punishment. The no ball has cost him dearly. Yeah, when you bowl a no ball, you deserve to be thrashed, and it's criminal. And a beautiful shot on the onside, nicely picked up, taking advantage of that no ball. Good shot and great result. Fabulous. So we're going to have enough problems as it is with the no ball and the 6 being hit, what the free hit. Now the ball is going to need to be dried a little bit, I guess, and a bit of ball management. I guess there's going to be a bit of a conversation with the captain to move some fields. Here we go again. That's nicely bowled, actually. So hopefully he's found a bit of rhythm with that last delivery. Perfect time for a bit of Tapalti. With the no balls and the wides
and the change of field placing, that is why the overs are taking so long. And rightly so, someone should intervene and tell them not to take so long. I mean, matches are taking so long. It's confirmation of the due. It's the umpire's job. Okay, got to control the game. Lots of due out there. Oh, lots of swing. Just the one. .23 for no loss. It's an excellent response to the target that given, 186. Not a huge target these days. I mean, especially the evening matches. We've seen that the evening matches with the dew around, it can be chased. So you have to bowl well. You have to bowl with a plan. What a shot that is. That is a magnificent stroke for 4. You can't bowl short. Nicely played, square cut, 4 runs. On top of that ball, saw it early, dispatched it for 4. What a way to open your account. Second ball he's faced. So the bowlers at the top have had their problems. Can't get any line and length going at the moment. Yes, there's a bit of swing around the place. But they have the problems of the ball, obviously, being a little bit wet. I think that's okay. Just inside that blue line, I reckon. Ali Imran got a 50 in the last game. And these are the shots he played. Beautiful shots all around the ground. And what disdain in some of the shots. Nicely pulled away. Oh, nicely lofted for 6 runs. Oh, beautiful. Straight as an arrow. That 50 should give him a lot of confidence. He's got a lovely whip of that bat when he gives it a thrash. Straight to the covers. You might have heard the call of no run. End of the over, 14 from it, 27 for none. They're away. Wicket takers are at the bottom, those 4, and it's often misleading, that economy rate, when you look at the work that they've done throughout the last couple of years, because guys like Junaid Khan, Ahmed, certainly this year, have been bowling at really tough times at the top and also at the end, and they've occasionally been on the receiving end of some seriously good batting, so those numbers get compounded. Spin. Kashif into the attack. They don't want this ball to get too wet for him. Easy. He'll look to just get through a few overs, I think. Just try and slide the ball in towards the body of the batsman. There won't be too much air around the place. Yeah, few reasons for him to come within the power play. One, later the ball will get maybe more wet, and the fast bowlers were taken to the cleaners, so he has no choice, the captain. Safe two. आगे चेक करो जरा, शाबाश. One. It's nicely bowled. Good ball, Kashif bhai, come on. I think it's a good result if he just gives away 1 at the moment. Can't get any purchase on the ball. There'll be a little bit of grease on the white kookaburra, so it's not going to grip and turn. Straight to the man in the covers. Stop ball. Come on. Kashif has bowled really well this tournament. He's taken wickets, contained.
hurrying the batsman that time. Couldn't take full toll of that. The spinners have done well. Generally, each team has had one premier spinner who's done well, bowled well. Kashish was their ace spinner, Balochistan's ace spinner. Yeah! Good work off his own bowling. And that's a really good over. Just 4 from it. 3 gone, 31 for none. It's a bit of a captain's nightmare, actually, when you walk out on the park and the 2 opening overs go for plenty. That's what happened here. The third one was good from the spin, the left-arm orthodox spin. But that means, of course, you've got to make 2 changes. When the first 2 overs are expensive, then you've got to get someone else into the attack as well. And Ahmed Asif, with all his experience, has been asked to come into the attack. He'll know exactly where he wants his field placements. Imamul Haq will just listen to him, I think, and give him what he wants. There's a man at deep backward square leg, actually, on the fence, and a man at cow corner. They're the 2 men outside on the circle. No one sweeping on the offside. That's in case he happens to drop anything slightly short. Quick single, good running. Umaid Asif, very seasoned customer, campaigner. He would lend some control to the proceedings. He will make his captain feel maybe a little more comfortable. The first 2 overs were all over the place, so the captain needs control and some good tight bowling from Umaid Asif. Nazir has just been looking towards that deep square leg position, fancying something in that region. Nope. Lovely length, just the one. Right, now we need to get you to get busy and hashtag wear your passion. Create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store now and get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 2021 shirt signed by the Pakistan squad. The deadline is the 15th of October. 5 lucky winners will be announced through the PCB official portals following the campaign end. Hashtag wear your passion. Oh, it's fallen, it's hammered. But what a lovely shot from Ali Imran. He's in good form at the moment. He plays these shots beautifully. Commanding stroke, just great footwork, balance, cover driven. Great to watch. 4 runs, and he enjoyed that shot himself also. Full follow through, nicely played. Umaid not happy. Hazy. Yeah, he's not. And it's, the shot then is a prime example, I think, of a batsman just using his balance without getting a really good stride in, just making sure he's nice and balanced, nice and upright, and playing through the line of the ball. Change of pace that time. Sent back by his partner. Keeper was smartly up, but would have been home. Let's have a look at that cover drive. Just watch this for a beautiful shot. No big stride. It's just magnificent. Foot wasn't to the pitch of the ball. Balance was perfect. Nice and upright. And just slapped it through that open area. A bit like Mohammad Azharuddin, actually. Oh, he sent back again. The good thing about the send backs is the calls are loud and they're early. So good support from Nazir. Nice comparison, Hazy. Azharuddin, good batsman, wristy batsman, good player. The thing about him, he's in form, so he's got to make the most of it. He's got everything going his way. Bowlers are struggling, the pitch is good.
Make it count. Good work from Ahmed. 6 from it, 37 for none. अच्छा जवाब दिया है अब तक नॉर्दर्न ने नासिर और अली इमरान के जरिए। दोनों अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। और काबिल जिक्र बात यह है कि दोनों ही अच्छे स्ट्राइकर हैं। दोनों आसानी के साथ न सिर्फ फील्ड को बल्कि बाउंड्री को भी क्लियर कर सकते हैं, गेम को यहां तक पहुंचा सकते हैं। इस काशिफ भट्टी को आज जल्दी लाया गया है क्योंकि जो ड्यू आती है बाद में स्पिनर को परेशानियां होती हैं, तो ये एक अच्छी चाल चली है इमामुल हक ने, ताकि स्पिनर के जो ओवर हैं उस खतरे से पहले ख़त्म कराने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, काशिफ भट्टी थोड़ा सा पेस ऑफ चेंज ऑफ पेस भी करते हैं, फ्लैट भी कराते हैं बॉल, तो अच्छा है ये कि स्किड हो रहा है टारगेट करें स्टंप्स को। अली इमरान, हम उम्मीद करेंगे कि इस सीज़न में इनको और भी ज़्यादा मौके मिले नॉर्दर्न के लिए। न सिर्फ ये कि वाइट बॉल क्रिकेट में, बल्कि जो 4 दिन के मैचेस शुरू हो रहे हैं इसी माह कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, क्योंकि ये वो क्रिकेटर हैं जो इनको हम 2 in 1 कह सकते हैं। ये दोनों ही मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं, नासिर नवाज और अली, और ओपनिंग बैटिंग भी कर सकते हैं। जब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं और उनकी तलाश की, तो फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसे खिलाड़ियों पर होनी चाहिए और मुस्तकिल उनको मौके देने की ज़रूरत है। ये नई गेंद को स्विंग कर सकते हैं अली इमरान, रफ्तार भी इनकी अच्छी खासी है। और बहुत ही ये शानदार शॉट खेलते हैं, ये गैर मामूली छक्का था इस बार। घुटने के बल आए और गेंद को लॉन्च कर दिया। इस 5वें ओवर का इख्तिताम बड़े शॉट पर किया अली ने, 46 पर कोई विकेट नहीं। ये 185 रन्स बलोचिस्तान ने बनाए। अब्दुल्ला शफीक जो टॉप स्कोरर थे, उनका ये ख्याल था कि बलोचिस्तान की टीम के 15 रन्स कम हैं। जब मरीना आपसे बात कर रहे थे वो इनिंग्स के इख्तिताम पर, और ये पहले 5 ओवर से लगा भी है कि उनकी बात बिल्कुल जायज़ थी। और अगर ये बॉलिंग इसी तरह होती रहेगी इधर उधर, तो फिर ये रन्स और कम लगने लगेंगे। ड्यू की वजह से भी यही कहना था उनका। और ये काशिफ भट्टी के ओवर की आखिरी बॉल थी, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा ओवर जा रहा था तब तक, 3 रन दिए थे, डॉट बॉल्स भी थी, लेकिन आखिरी बॉल बना के दी के मार सके, और मारा भी उन्हें 6 रन के लिए। तो यहाँ पे आसान नहीं है बॉलिंग करना इन कंडीशंस में, लेकिन बात यही थी कि नॉर्दर्न के ओपनर्स जा रहे ना खेलेंगे, इसलिए टोटल जो है वो उन्हें कम लग रहा था।
अच्छी डिलीवरी डिप करती हुई आई, रफ्तार में रद्दोबदल किया था उमैद आसिफ ने, शॉट पहले ही खेल लिया। ये जे डॉट सुपर ओवर, देखिए हाँ ये गेंद स्विंग करने में कामयाब हुए और ये यॉर्कर, ये बहुत ही कांटे का मुकाबला रहा, इससे दोनों को ही इनाम मिला है। एक और अच्छी डिलीवरी, इस बार भी हिट लगाने पहले ही चले गए थे, ऑफ द विकेट गेंद आहिस्ता आई। बहुत अच्छा रीड करते हैं बैटर को उमैद आसिफ, और इनकी वेरिएशंस वो हैं जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सही लाइन लेंथ पे गिरती हैं। ये देखें किस तरह उंगलियों के बीच में इस बॉल को पकड़ा था और ऐसी लेंथ पे हिट किया कि बाउंस भी मिला है लेकिन पेस भी ऑफ थी। ये दोनों उंगलियां जो हैं वो खुली रखते हैं। ये ताज वली, इनको बुलाया गया कुमक के तौर पर, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। ये बलूचिस्तान के लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हैं, लंबे स्पेल करते हैं, और इनके साथ ये राजहंस हैं जो स्क्रीन के बाएं जाने मौजूद हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और असिस्टेंट कोच। ये अच्छे ऑफ स्पिनर हुआ करते थे एक ज़माने में, 90 की दहाई में बहुत इन्होंने विकेटें ली। इस बार उठाकर खेला, क्लियर कर जाएंगे इन फील्ड को, बल्कि शायद ये बाउंड्री को भी क्लियर कर गए। अंपायर का इशारा आने को है, जी हाँ छक्का लगाया है अली इमरान ने। पिक कर ली थी स्लो बॉल और इस टाइम लेंथ जो है वो आगे दे दी थी उमैद आसिफ ने, और उसका भरपूर फायदा उठाया। अच्छी बेस थी, ज्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मिडिल बखूबी किया 6 रन के लिए। हाँ ये सलाहियत है इनकी, खास ताकतवर क्रिकेटर हैं, कद बड़ा है, इससे आसानी के साथ गेंद को लिफ्ट कर देते हैं। नॉर्दर्न की खूबी ये है, इस एतबार से ये T20 में एक बड़ी टीम समझी जाती है कि इनके जो चोटी के बैट्समैन हैं, यानी जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, उनमें बड़ी सलाहियत है। अली इमरान, नासिर यहाँ खेल रहे हैं, और जीशान मलिक जो हैं वो टीम में शामिल हैं, पहले वो ओपनिंग कर रहे थे, वो भी सलाहियतों से मालामाल क्रिकेटर हैं। खेला इसे थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन से, लेकिन खूबसूरत प्लेसमेंट। पिछले ओवर का इख्तिताम छक्के पर हुआ, इसका चौके पर। पावर प्ले के बाद नॉर्दर्न ने बना लिए हैं 59। तो 6 ओवर्स का जो राउंड था वो तो पूरा हो गया, और नासिर और अली इमरान जो हैं काफ़ी वबाल बनते जा रहे हैं। जिस तरह दोनों बैटिंग कर रहे हैं, संभलने का मौका नहीं दे रहे, उनके पास शॉट्स की भी बहुत आते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट से भी आगे फिलहाल जा रहे हैं, 9.83 की रन रेट है इनके भी। बलूचिस्तान के लिए जरूरी था पावर प्ले को डोमिनेट करना, चाहे वो बैटिंग थी चाहे बॉलिंग, लेकिन बॉलिंग में काफी हद तक नाकाम रहे हैं विकेट निकालने में। काशिफ भट्टी कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन को फॉलो करने की। ये राजहंस
जो हैं एक ज़माने में एलाइट बैंक के बड़े मुस्तनद क्रिकेटर थे और बलूचिस्तान के अरशद खान के साथ इनका स्पिन बॉलिंग का पेयर था। दूर रह गए, गेंद स्पिन भी हुई। एक राजेंद्र सिंह हंस हुआ करते थे जो भारत में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, बड़े फेमस यूपी के। उन्होंने 300 से ज्यादा विकेटें हासिल की थी। बिशन सिंह बेदी की तरह अंदाज था और यहाँ अच्छा अंदाज नहीं अपना सके, आउट हो जाएंगे। अच्छे फील्डर हैं अम्माद भट्ट, वो लॉन्ग ऑफ से आए सामने की जानिब और कैच ले गए। इस तरह भट्टी ने ब्रेक थ्रू दिला दिया। रूम दिया था, ऑफ साइड पे खेलना चाह रहे थे लेकिन उतनी पेस नहीं थी और फिर सीधा उठाने के लिए कमिट कर गए थे और इस बार गलती कर बैठे, मिडिल नहीं कर पाए थे। और काशिफ भट्टी बहुत इंटेलिजेंट बॉलर हैं और फाइनली जो ब्रेक थ्रू चाहिए था बलूचिस्तान को वो नहीं मिला। नासिर नवाज 30 रन बना के वापस, नॉर्दर्न 60 पे 1। जीशान मलिक को हम याद कर रहे थे, पहुंच गए वो बैटिंग क्रीज पर। तकरीबन 120 का स्ट्राइक रेट है, 4 मिस सेंचुरी बनाए हुए हैं और ये भी उसी अंदाज से खेलते हैं जिस तरह ये खेल रहे थे नासिर और अली। गेंद टर्न हुई, आउट होने का खतरा और रन आउट। बगैर कोई गेंदे खेले ही जीशान मलिक को जाना होगा और इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। आप टीम में वापस आए हूं और रन लेने के लिए इतनी बेताबी होनी भी नहीं चाहिए थी इनकी। यहां जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा और लग रहा है कि जो फैसला है वो इनके हक में नहीं आएगा। कलेक्ट किया इन्होंने बॉल और इस एंगल से ये इनकी खुशकिस्मती है कि बॉल पकड़ ही नहीं पाए काशिफ भट्टी। ध्यान लगा ऐसे था कि जैसे गेंद इनके हाथ आ गई है तो वापस आए हैं। देर जरूर हो चुकी थी लेकिन इतनी नहीं, नॉट आउट का फैसला जो है यहाँ आना चाहिए। लेकिन नजरें हट गई थी इनकी, नजरें जो हैं वो इनकी स्टंप्स पे चली गई थी गेंद की बजाय आखिर में भट्टी की। जल्दबाजी की वजह से ये हुआ है, वरना ये बहुत बड़ा रन आउट था। और जो पिछले एंगल से हम देख रहे थे लग रहा था कि काफी मार्जिन से आउट हुए हैं लेकिन सामने वाले एंगल से नहीं था। 60 पर 1। नॉर्दर्न 60, 1 विकेट के नुकसान पर काशिफ भट्टी ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और पिछले ओवर में उन्होंने खामोश रखा बैटर्स को। दोनों एंड से लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग होगी। मरीना यहाँ पे स्पिनर को किस रफ्तार पे बॉलिंग करनी चाहिए,
ये पहले रन आउट देखिए, और ये वो कंफ्यूजन है, आधी विकेट पे पहुंच चुके थे, बहुत बड़ा रन आउट था, लेकिन काशिफ भट्टी कलेक्ट ही नहीं कर पाए गेंद को, और एक तरह से नई जिंदगी मिली है, एक तरह से नहीं बल्कि नई जिंदगी मिली है इन्हें, इसका भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा इन्हें। मुश्किल हो रही है क्योंकि गेंद बल्ले पर नहीं आ रही, पिच जो है वो सुस्त से सुस्तर हो गई है, और जो ये गेंद की चमक दमक कम हुई है तो स्ट्रोक प्ले इतना आसान रहा नहीं। लेकिन इस बार क्रीज में डीप गया, लॉन्च किया इसे रॉकेट की तरह, शानदार छक्का अली इमरान का। दिलकश शॉट, ये अच्छा फुटवर्क था, पहले आगे थोड़ा सा गए, उसके बाद लेंथ पिक कर ली थी और पिछले पैर पे आके उठा दिया। आसान नहीं होता बैकफुट पे छक्का मारना, लेकिन इस पेस पे और इस लेंथ पे यही नतीजा होना था। ऑफ साइड में 2 फील्डर बाउंड्री पर हैं, लॉन्ग ऑफ और डीप कवर, ऑन साइड में 3 हैं। गेंद जो है ये आप देख सकते हैं, लेग साइड में 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर खड़े किए, इसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, इस मरतबा कैच आउट होने का खतरा है और एक और कैच गिर गया। ये लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी का ही कैच था, इमामुल हक जाकर लगे हैं, सीधा न सिर्फ दोनों टकराए, जख्मी हुए, यहाँ बंगल सही लगते हैं, शायद उनकी नाक पे चोट लगी है, इमामुल हक भी गिरे हुए हैं। ऐसी चोटें खतरनाक होती हैं और ये इसलिए भी तकलीफ हो रही होगी कि कैच भी गिर गया। लॉन्ग ऑफ का कैच था ये बिल्कुल, और इमामुल हक डेस्परेट तो थे कैच करने, लेकिन कॉल मिलानी जरूरी होती है फील्डिंग में भी। जहां गेंद को फ्लाइट किया और इससे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हिट लगाने की कोशिश की विद द स्पिन, स्ट्रोक पर कोई कंट्रोल नहीं था और ये वाज़ेह तौर पर ये बंगल सही का कैच था। इमामुल हक को देखना चाहिए था कि वहां पर पहले से फील्डर तैनात हैं, उसका अंदाजा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तिब्बी इमदाद की जरूरत होगी क्योंकि अभी तक अपने हवास में लगते नहीं है बंगल सही। उम्मीद करेंगे कि वो दोबारा यहाँ पर खेलते हुए भागते दौड़ते नजर आए। इस तरह के कैचेस में कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इमामुल हक की भी नज़रें बॉल पे थी, बंगल सही की भी नज़र बॉल पे थी, और बहुत लास्ट मोमेंट पे एहसास हुआ, मैं ख्याल है कि नाक पे लगी है बंगल सही के। देखिए बंगल सही बिल्कुल गेंद उनके हाथों तक भी आ गई थी और जिस वक्त वो उसे काबू में ला रहे थे, इमामुल हक इस असना में सीधा आकर उनसे टकरा गए। अली इमरान को एक और मौका मिल गया, 34 रन पर जा पहुंचे। नासिर आउट होने वाले इकलौते बैट्समैन हैं। अमाद भट्ट ने उनका कैच लिया काशिफ भट्टी की गेंद पर। काशिफ भट्टी जो है, इनका पिछला ओवर इतना अच्छा नहीं था, इस बार गेंद को उन्होंने स्लो किया। नासिर नवाज ने भी बिल्कुल वैसा शॉट खेला था और ये इसी तरह का ये कैच होना था। अली इमरान ने भी, अगर इमामुल हक नहीं जाते वहाँ बंगल सही की तरफ, लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी बॉलिंग थी, अच्छी पेस और लेंथ पे बॉल की थी काशिफ भट्टी ने। फिलहाल ये बलूचिस्तान के बॉलर्स की कारकर्दगी है, एक ही कामयाबी हासिल की, वो काशिफ भट्टी की थी। मैं आसिफ काफ़ी आज 2 ओवरों में 19 रन दिए उन्होंने, 5 डॉट बॉल्स की, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। मैदान पर ज़्यादा खुशकुन सूरत हाल है नहीं, बाहर ले जाया जा रहा है बंगल सही को।
स्ट्रेचर पर। और मुझे याद है एक बार श्रीलंका में कैंडी में मैच हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैच, तो उसमें स्टीव वॉ और जेसन गिलेस्पी वो टकरा गए थे। तो एक नाक पे बहुत बुरी तरह चोट आई थी और दूसरे की टांग पे। दोनों महीनों तक क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। ये इस मैच का अब तक का हम कह सकते हैं हाल चाल। बलूचिस्तान ने 185 बनाए। नॉर्दर्न की टीम पटरी पे है इस वक्त, वो जीत की राह पर गामजन है, लेकिन ये जो तातुल है ये इनके खिलाफ भी जा सकता है। अक्सर देखे मोमेंटम जब बैटिंग का टूटता है तो बॉलिंग साइड को ज़्यादा फायदा होता है। अब देखते हैं कि बलूचिस्तान किस तरह इस चीज़ से रिकवर करता है, और उम्मीद करते हैं कि बंगलजई को बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा। जी हाँ, क्योंकि अभी इस टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का भी इम्कान है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सर पर है। बंगलजई से बड़ी उम्मीदें इस सीज़न में कि वो फिट रहकर इस टीम की बैटिंग का सहारा बनेंगे, क्योंकि वो दरियाफ्त हैं पिछले सीज़न की। इस सिस्टम में बलूचिस्तान के लिए यही एक दरियाफ्त है बंगलजई। इनके 4 खिलाड़ी पहले ही क्वारंटीन में। अली इमरान 1 रन लेकर अगले ओवर में भी सामने रहेंगे 70 पर 1। Run 16 required of the final 12. Imran 35 not out. He's looked like the player will take the attack to the bowling. Misfield. Just cost them 1. A bit of concern with that injury. Coach might need to get their kit on. Said bin Nasser as well, former first-class player. Hope the guys are all right, especially Bangalzai. Just reminded of the Jason Gillespie and Steve Waugh incident. I hope both of them are okay, actually. Imam injury prone. Clean pickup from Haris Sohail, and that might have been interesting. There's few oohs and ahs in the field. There's an opportunity as he hit straight to the field and ran. And a clean pickup, and might have been trouble. Yeah. In the scheme of things, it's Kashif Bhatti really is. He's like that Liberty roundabout, pretty busy with the ball, and he's been able to keep a stem on the run flow. So it's into his 4th over, and he's only given away 18. Now the problem now is that he'll bowl out right now. Who replaces him, because nobody's been as effective as him. Well, he ends the over with a ball tossed up, which has been greeted by a smash down the ground. 6 to end the 9th, 80 for 1. What Northern do so well is that they keep on attacking. They won't leave anything in the bank.
Bit of turn for Haris Sohail. Needs to find the right pace on this pitch. It's nice to see that they've got, you know, the 3 or 4 or 5 of their players have gone to the World Cup squad. But they're still keeping up with the positivity, attacking. Ali Imran's playing a good knock here. It's a beautiful shot. 6 runs. I just love the approach that Northern have in terms of their batting unit. They just go for the attack from ball 1 to ball 120. And they don't back down. Even the last game, partnership at the very end got them through. Just for men, scan the QR code to win exciting prizes. Back into the day, Sri Lanka used to have this approach. Jayawardene and, you know, Jayasurya and Kalu Vitarna, they started that. And then the players coming in the next few years, they carried on with that positive approach. They started that. Down the ground. Haris Sohail, this over is taking pace off the ball, which has worked for him. But he knows that Ali Imran will be eyeing that straight fence again. A decent over from Haris Sohail. It's 83 for 1. Comparison almost equal. 83 for 1, plays 84 for 1. It's like that traffic almost equal both ends. Imam's back. No wonder I was more worried about Bangalze, because Imam's back didn't look that bad for Imam. We hope that Bangalze is also back soon. Wishing all the best from here. Yeah, the good news is the captain is back. Imad Butt. 103 required off the final 10. Does have a knack of picking up wickets as Imad. Makes room, thumps it leg side out of the ground. 6. Excellent cricket. Attacking the new bowler. First ball of the over. Short ball down the leg side. Pulled away for 6 runs. Great shot. Bowler not happy, obviously. He'll have to think of something different. Maybe bowl fuller outside the off stump. Call for 2, and they're not going to get that. You just saw Northern have hit 6 sixes, and they've already got more 6s than Balochistan did the whole inning. Balochistan got 4. And a lot of T20 cricket is based around that power hitting or around 6 hitting.
and Northern do it the modern way. Muzai is walking. That's a good sign. He's just maybe going to get more attention, but he looks all right, which is a good sign. Good to see him walking. Shaken but walking, that's great. And that's the incident. I mean, Imam had no business running into him, but too eager. Lucky that both of them are okay. Certainly a Gillespie war moment. Very important for Balochistan to win this game and keep themselves in the tournament. They'll have a chance even if they lose this game, but important for them to now really start to win games and make sure that they make a run for the semi-finals. And this is probably the moment that somebody with the ball has to step up. You know that Northern will keep coming at them, but somebody has to bowl a spell which turns the game. That's a wide. Have to show more discipline, the bowlers. I like Balochistan. They've done well. They lost a few matches, then they came back. I like Imam's captaincy. He keeps a slip, wants to attack. Right now, there's not a slip, but usually there is a slip, which is nice to see. So I hope they do well and get a wicket. Shot and fine leg in the circle, so that'll go to the fence. Pour into the over. It's 96 for 1. Broadcasters, television, you want Pakistan, North America, UK and Europe, but if you want streaming, jump on to PCB YouTube channel or PCB Facebook page. High definition, crisp pictures. Need to go at exactly 10s. And big full tosses will help Northern scores. Smashed away over the boundary, maximum. And that brings up Ali Imran's 50. It's just off 33 deliveries. And he's hit 5 sixes. Back-to-back 50s for Ali Imran. Gift happily accepted and deposited. Square leg boundary. Beautiful shot. Excellent result. You don't bowl this to a guy who's close to 50 runs. Scored a 50 before this also.
6 of the first ball just takes all the pressure off. And now it's almost like Northern can take this as a bonus over. If you can get more than 10. You're up with the required rate and more. Leg side, has he got the gap? Yes, he has, and that's gone to the boundary. That's loose bowling once again. And nicely done. Gave him the opportunity and he said, okay, I'm going to hit you for a 4. Already 11 in the over. Final delivery coming up. Zishan Malik. And chips it in the air, just a single to long on. 12 gone, it's 108 for 1. एक 108 पे 8 ओवर्स का खेल बाकी है और खेल है काबू में नॉर्दर्न के इस वक्त। 78 चाहिए 48 गेंदों पर। अली इमरान अच्छे फॉर्म में हैं और उनका रहना जरूरी है अगर नॉर्दर्न को बरकरार रखना है अपना कंट्रोल इस गेम पर। लेंस का खेल है सारा, लेंस का खेल है सारा। जरा सा चूके और आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा जैसे यहां हुआ। 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हो गई। एक बार फिर ये गए थे स्लो गेंद करने के लिए, लेकिन खासा वक्त मिल गया। पीछे हटे हुए थे, इनका ख्याल था कि ऑफ साइड में शॉट खेलेंगे, लेकिन जब देखा गेंद बॉडी की तरफ आ रही है तो लेग साइड में हिट लगा दी। अच्छे बैट्समैन हैं जीशान मलिक, डबल सेंचुरी बना चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बहुत जोर से हिट करते हैं, ज्यादातर शॉट्स अपने ऑफ साइड में खेलते हैं। ये और 4 हो सकते हैं अगर रेस जीत सके उम्मीद। काफी लंबी टांगे हैं इनकी, लेकिन डाइव जो है उसमें पूरी तरह कामयाब ना हो सके। बैक फ्लिक करना चाहते थे बॉल को, लेकिन गेंद इनकी बॉडी से लग के रोल हो गई रोप तक। यह शॉट बड़ा ही खूबसूरत था। एक और स्लो डिलीवरी और इस बार भी गैप ढूंढने में कामयाब हुए। और यहां गेंद हालांकि रोक ली थी, गेंद पर कंट्रोल था, खुद पे कंट्रोल नहीं कर सके। लंबे टॉल फास्ट बॉलर हैं, मुश्किल होता है जितना, लेकिन अच्छी रिकवरी की थी। फौरन वापस आए गेंद को देखने के लिए, लेकिन वो गेंद इनकी बॉडी को लग के साथ रोल हो गई। बेहतर ही होगा इनको थर्ड मैन बाउंड्री पे ही रखा जाए। कप्तान को एहसास हो गया है। ये गेंद हवा में, लेकिन वाइड है थोड़ा। उमैद आसिफ ने इसको कट ऑफ कर लिया। एक लम्हे के लिए लगा था कि शायद थर्ड मैन इस तक ना पहुंच पाए।
ये अली इमरान जिन्होंने आज अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है, बड़े खूबसूरत शॉट खेले हैं फ्रंट फुट से, ये कई दफ़ा पुल भी कर देते हैं, स्पिनर को भी आड़े हाथों लिया, स्लो डिलीवरीज और ऊंचे शॉट खेले और ये बैक फुट पर छक्का लगा दिया और ये तो इनके लिए तोहफा था। जो बैटिंग कोचेस टैलेंट देखते हैं, पहली जो वो झलक देखना चाहते हैं किसी भी बैट्समैन में कि जब वो टैलेंट का अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो बैक फुट पर भी चौका लगा सके और अगले कदम पर भी उसमें बाउंड्री लगाने की अहलियत हो। और ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं अली इमरान जो नॉन स्ट्राइकर हैं, ये बैक फुट पे छक्का भी लगा सकते हैं, फ्रंट फुट से भी छक्का लगा सकते हैं। खड़े खड़े भी, जी हाँ, ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग में इस बार नेशनल T20 में इतना इस्तेमाल नहीं किया गया इनका, लेकिन ये अच्छी मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं। रन्स होंगे यहाँ पे, अगर तेज दौड़े तो मौका है दूसरे का, लेकिन जो फील्डिंग है वो बड़ी अच्छी रही है बलूचिस्तान ने। और हमने कल सिंध को भी देखा था, जो डीप में खड़े हैं बाउंड्री राइडर्स जो है तेजी से गेंद के ऊपर लपकते हैं। सिकंदर मैं वापस आऊंगा, अली इमरान जो आपकी स्क्रीन पर हैं, आपने जिक्र किया था कि ये बॉलिंग भी करते हैं मीडियम पेस, ये नई गेंद अच्छी करते हैं और सुहेल तनवीर जिस तरह की बॉलिंग फॉर्म में हैं, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए था। कप्तान उमर अमीन को थोड़ी सी हैरानी हुई कल भी और आज भी, इनको बॉलिंग में इस्तेमाल नहीं किया गया। उम्दा शॉट था, गेंद लग गई बूट पे अमाद बट के फॉलो थ्रू में, वरना ये यकीनी तौर पे 4 होना था। 13 ओवर्स के बाद 120, एक खिलाड़ी आउट। छियासठ 42 गेंदों पर नॉर्दर्न को चाहिए और ये हिंद से जो है वो फेवर करते हैं बैटिंग साइड को। 185 बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो चेज ना हो जाए। और ये जो हिंद से हैं आज एक और भी जाहिर करते हैं कि 2 नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो मुकाबले पे खेल रहे हैं। पहले अब्दुल्ला शफीक ने निस्फ सेंचुरी बनाई, अली इमरान उसका जवाब दे रहे हैं। तो अच्छा दिन गुजरा है आज नौजवान बैट्समैन के लिए यहाँ। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें इसमें कोई दो राय नहीं। जब सीनियर प्लेयर्स वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए चले गए हैं, तो जब आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इसको आप दोनों हाथों से दबोच लें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। जब आपको पूरी दुनिया देख रही है टेलीविजन पे, आपकी परफॉर्मेंस को देख रही है, तो आप इसी तरह नोटिस होंगे। और अगर आप ये मौका गवा देंगे तो फिर आप शिकायत भी किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसे आइडियल प्लेटफॉर्म से जिम्मेदारी के साथ ओपनिंग स्लॉट दिया गया है और उसे पूरे उतर रहे हैं। 55 बनाए हैं 37 में अली इमरान ने, इससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने अपने जलवे दिखाए। बॉलर भी आप देखें, नजीबुल्लाह को मौका मिला है। एक ही ओवर कराया है, आपने जिक्र किया अली इमरान का, जो शादाब ने इनको इस्तेमाल किया था। आखिरी ओवर में कोई मेरे ख्याल में कोई 15 रन चाहिए थे या 3 छक्के चाहिए थे। शाहीन शाह स्ट्राइक पे थे, उन्होंने कहा कि हमें मीडियम पेसर से एक ओवर करवाना है। स्पिनर नवाज का ओवर बाकी था, तो एक ही ओवर इस कराया है इन्होंने पूरे नेशनल T20 में। और इनकी जो टीम है रही है नॉर्दर्न की, वो इतनी पैक्ड है बॉलिंग ऑलराउंडर्स से, अब नहीं है स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। जी हाँ, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इनको चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है, कप्तान जब स्पिनर हो उसको भरोसा होता है कि वो कर सकता है आउट इसी तरह। लेकिन मैंने इस बात को मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि शादाब ने टीम को चलाया बड़ा अच्छा है, सबको मौका दिया है। बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि नवाज ने एक भी ओवर नहीं कराया, बैटिंग में ऊपर आए। और जो पूरा आइडिया था कि मैक्सिमम
जितना हो सके मौके दी जाए वर्ल्ड कप के स्क्वाड के प्लेयर्स को, वो कर दिया गया है। अब इनकी बारी है। यहां अब कप्तान को इनको वो ज्यादा मौके देने चाहिए बॉलिंग के भी। टपाल्टी को एंजॉय करते हुए इस मैच के साथ, ये मैच जाएगा आखिर तक ऐसा लग रहा है। चाय भी आखिर तक जाएगी, इसमें एक भी सिप मिस नहीं हो सकता। अच्छा हुआ जो तसादम हुआ था अब्दुल वाहिद बंगलजई और कप्तान इमाम के बीच, ठीक हैं दोनों। यह है बॉलर की, ये जो कहते हैं ना जहन को इस्तेमाल करना। देखा कि अपने लिए रूम बना रहे हैं, दो तरीके होते हैं, या तो आप फॉलो करें बैट्समैन को, जगह ना दें उसको खेलने की, या उसे दूर कर दें बॉल। यहाँ अच्छी बॉलिंग की है नजीबुल्लाह ने, काफी रफ्तार है। आज इनको मौका नहीं मिला सलमान रिशाद को। सलमान रिशाद पिछले मैच में इन्होंने 4 ओवर में 56 रन दे दिए थे। इससे फाइन लगे, ऊपर से खेल दिया खूबसूरती के साथ और बाउंड्री को क्लियर किया। ये छक्का लगाया। यहां जीशान ने बड़ा अच्छा कनेक्ट करने में कामयाब हुए। जी, आपकी बैटिंग आर्सेनल में ये शॉट्स अब होना जरूरी है T20 क्रिकेट में। अगर आपके पास ऐसे कुछ इनोवेटिव शॉट्स हैं तो आप कामयाब हैं, और बड़ी कामयाबी से इन्होंने 6 रन हासिल किए। अच्छा इसको स्कूप किया इन्होंने यहाँ पर, बेस का इस्तेमाल करते हुए। बॉल में कोई खराबी नहीं है, लेकिन बस सिर्फ फर्क ये है कि मौका दे दिया, इतना टाइम दे दिया। आपको बड़ा क्विक ऑन योर फीट होना चाहिए एज अ बैट्समैन अगर आप ऐसे शॉट खेलना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी वक्त तक आप जाहिर नहीं करना चाहते आप क्या करने वाले हैं। तो जल्दी से मूव करके पोजीशन में आना, ये कामयाबी है अगर आप कर सकते हैं। यहां पर फील्डर नहीं पहुंच सके, 4 रन के लिए खेला ऑफ साइड में, और यही वाइड रेंज है स्टोक्स की जीशान के पास। छक्के और चौके पर ये 14वां ओवर खत्म हुआ 133 पर 1। बराबर चल रहे हैं दोनों इस वक्त इस स्टेज पर। फर्क करीबी समझे 6 रन का है दोनों टीमों में। 127 इस स्टेज पे 2 खिलाड़ी आउट बलूचिस्तान था, 133 हैं 1 खिलाड़ी आउट पे नॉर्दर्न। जुनेद खान को वापस लाया जा रहा है। आज एक ही ओवर किया था, 13 रन इन्होंने दिए। अभी तक सेटल हो नहीं सके इस टीम में जुनेद खान। आज फिर मौका मिला है क्योंकि खुरम शहजाद दस्तयाब नहीं है, इनके सरकर्दा बॉलर थे। आकिफ जावेद भी खेले थे शुरू में, दोनों इन दिनों क्वारंटीन में। जी हाँ, आकिफ जावेद इनकी टीम के लिए दस्तयाब नहीं। खुरम शहजाद, बिस्मिल्लाह खान, जल्लाद खान। 2 की फिर कोशिश, पहला तेजी से दौड़ के फिर उसके अगेंस्ट डिसाइड किया। ये बड़ा खूबसूरत शॉट, रूम क्रिएट किया। और देखिए आमतौर पर जब ये फुल टॉस बैट्समैन को नजर आती है तो बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने अपर हैंड का ही ज्यादा इस्तेमाल किया। खूबसूरती के साथ जीशान ने एक्सिक्यूट किया ये कवर ड्राइव। इसी मौके पे अभी अपडेट देते चले हमारे देखने वालों को कि अब्दुल वाहिद बंगलजई बिल्कुल ठीक हैं। उनकी टीम ने ये बताया है कि वो अवेलेबल होंगे अगले मैच के लिए, तो ये अच्छी खबर है।
ये भी हो सकता है कि अगले कुछ ओवर्स में हम उनको फील्ड में भी देख सकें। यहाँ हम यही उम्मीद करेंगे कि वो फिट हो जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान की टीम को फर्स्ट क्लास सीजन में जाना है। उससे बड़ी तवक्कुआत हैं। गो कि उनका नाम नहीं आया पाकिस्तान ये टीम के लिए जो श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, लेकिन बॉर्डर लाइन केस से पिछले ओवर में जिक्र हुआ था कि आज नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी अच्छी रही। अली इमरान 58 रन पर नॉट आउट हैं और अब्दुल्ला शफीक ने इससे पहले खुद को मनवाया। और ये यहाँ आके गद्दाफी स्टेडियम में ये इसलिए भी इनके पास सुनहरी मौका है कि आज जिस वक्त अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं रमीज़ राजा, वो अपने दफ्तर में मौजूद थे, वो देख रहे थे उन्हें खेलते हुए। तो आप जो है वो और भी नज़रों में आ जाते हैं। आपकी नजरों की भी दाद देनी पड़ेगी, आपने इतनी दूर से देख लिया। भाई देखें, क्रिकेटर जो है ना वो क्रिकेट से हमेशा मोहब्बत करेगा और जहां भी टाइम मिलेगा वो जरूर एक मैच को एंजॉय कर सकता है। परफॉर्मेंस किसी की अच्छी हो रही होगी तो क्यों नहीं महसूस हो। क्योंकि आज जावेद मियांदाद के भी टेस्ट करियर की आज के दिन इब्तिदा हुई थी, तो एक बड़ी कहानी है, बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी कि जावेद मियांदाद जब यहाँ आए थे सिंध की अंडर 19 टीम के लिए खेलने, तो उन्होंने जो डबल सेंचुरी बनाई पंजाब के खिलाफ, अब्दुल हफीज़ कारदार जो चेयरमैन थे उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अपने दफ्तर से उनकी बैटिंग देखी थी और उन्हें टैलेंट ऑफ द डेकेड करार दिया था। उनसे आकर मिले थे और जल्द जावेद टीम में आए। ये ऑफ स्टंप के बाहर से ट्रैक करके से ऑन साइड पे खेल रहे हैं इमरान हर बॉल को, ताकि कहीं से 2 हासिल हो जाए। सारे फील्डर्स डीप में हैं। ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। जब आपको वेकेंट जोन दिख रहा हो तो आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं अपने शॉट्स खेलें। बहुत ही जबरदस्त शॉट, दिखाई इतना अच्छा जब इन्होंने अपने बल्ले से खेला है। एक परफेक्ट कैसे है ना स्क्वायर कट इन्होंने खेला है। ओवर मुकम्मल हो गया 15 के बाद 142 एक आउट। पेशकदमी जारी है नॉर्दर्न की एक और कामयाबी की तरफ। सिर्फ 44 रन बाकी रह गए हैं। 2 सेट बैट्समैन इस वक्त पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और एफर्टलेस इनिंग्स खेल रहे हैं दोनों, और ऐसे आसार भी नहीं लगते कि बॉलर विकेट की तरफ आ रहे हैं। हर ओवर में बाउंड्रीज आ रही हैं इनटू द पिच। इस बार स्लो डिलीवरी करने की कोशिश की थी। बहुत जोर से हिट करते हैं ये। ऑफ साइड में भी जब खेलने के लिए जाते हैं ज़ीशान। और 4 रन हो गए यहां पर। एक मौके के लिए लगा था कि शायद बूट वर्क काम आ जाएगा अमाद का, और ये हैरान है यहां पे उमैद आसिफ भी इस एफर्ट से। हालांकि इतना आसान नहीं था, शॉट बड़े अच्छी टाइमिंग के साथ खेला था। बॉलर को लगता है कि फील्डर की गलती हुई है। यहाँ ये बहुत ही गैर मामूली स्ट्रोक था। तकरीबन अगले कदम पर आते हुए उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला। नजीबुल्लाह को ये कट ऑफ करना चाहिए था, पांव की बजाय हाथ का इस्तेमाल होना चाहिए था। उमैद आसिफ
को नजर आ रहा है कि गेम इस तरह से हाथ में नहीं आएगा। विकेट्स की बहुत अशद जरूरत है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जिस तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंसेस हमारी पूरे नेशनल T20 में चल रही हैं और हम देख रहे हैं ना सिर्फ वर्ल्ड T20 के वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स जा रहे हैं खेलने के लिए, सिर्फ उन पे तवज्जो नहीं, बल्कि जो ये 100 के करीब प्लेयर्स जो हिस्सा ले रहे हैं नेशनल T20 में डोमेस्टिक सर्किट में, उनसे मुलाकात करेंगे चेयरमैन रमीज राजा और उनसे बात करेंगे। और ये एक अच्छा कदम है। 1-on-1 अंदाज़ा होता है कि प्लेयर्स को क्या चाहिए, उनसे आपको क्या चाहिए, और ये एक अलग बॉन्ड क्रिएट करता है। तो ये एक अच्छा मूव है। इसको लेग अंपायर की जानिब देखा, लेकिन ये वाइड नहीं थी, पहुंच में थी बैट्समैन के। जी हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं वो यहाँ लाहौर में ये जो मौजूद इस वक्त जितने भी क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी सर्किट के 100 के करीब, उनसे वो मुखातिब होंगे। ये अच्छा मौका होगा सबके सामने अपना जो विजन है वो पेश करने का, किस लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट को जाना है आने वाले दिनों में। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हुई है। स्लाइटली शॉर्ट बॉल थी और ओपोनेंट बहुत ही शानदार कैच लिए यहाँ पर। इसी ओवर में एक जरा हाफ हार्टेड अटेम्प्ट दिखा था फील्ड में, लेकिन ऐसे फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस भी नजर आते हैं और ऐसा ही कैच डिसमिस कर सकता है इनफॉर्म बैट्समैन अली इमरान को। आपको कुछ ना कुछ स्पेशल करना होगा फील्ड में अगर आपने वापस आना है मैच में, और ये वही मौका था। अली इमरान ने शॉट तो सही खेला, लेकिन आप देखें कैसा कैच बना के क्रिएट किया है। और फील्डर है सुहेल अख्तर। उमैद आसिफ पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब हो गए। क्या यही वो ओपनिंग थी जिसकी तलाश थी बलोचिस्तान को? 148 पे 2। आमिर जमाल, इन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप खेली थी पिछले मैच में रोहेल नजीर के साथ, और मैच फिनिश किया था अपनी टीम के लिए। डेब्यू था उनका ये पिछला मैच। अली इमरान अभी आउट हुए। बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। शॉट सिलेक्शन गलत नहीं था, बस वो एलिवेशन नहीं हासिल कर पाए जो चाह रहे थे, और कैच बड़ा उमदा लिया है सुहेल ने। डिप हो रहा था, उनको ख्याल आया कि गेंद शायद इन तक पहुंचे नहीं, आगे डाइव करके इसको पकड़ा। और इस सिंगल के साथ जीशान ने अपने 50 रन मुकम्मल किए। मच नीडेड नॉक था ये, काफी टाइम से वेट कर रहे थे वो इस अपॉर्चुनिटी का, और उमदा इनिंग्स खेल रहे हैं और चाहेंगे नॉर्दर्न के खेलते रहे। 149 पे 2।
Right, 37 off 24 balls. They've got 8 wickets in hand. It's going to be a little difficult to see how they can stop them. They were ecstatic, Balochistan, to pick up that wicket. I'm going to explain why they were, because this is a really important game for them. Obviously, it's an important game for Northern as well. 37 now. Got to go at 9.5 and over. Let's call it that. Zishan has played really nicely, 50 off 31 balls. A couple of sixes and 6-4. Strike rate of 161. That's really good going. 8 wickets in hand is a really handy position to be in. Junaid Khan has been one of those guys who's been expensive. He's been going at 9.6 runs to the over in this edition of the National T20 Cup. So I can't see any reason with the ball being a little bit difficult to bowl with. That's not going to be a similar pattern for the last couple of overs. It's going at 11s at the moment. Slower bouncer. Straight to the man at deep mid-wicket. Just the one. It's a good start from Junaid. $150 for 2. 9.39 the asking run rate. Let me just go through this very briefly. Balochistan have obviously got to try and get 2 points now. They got 2 games to go, so they can potentially get to 12 points. KP have also got 2 games to go. They're top of the log. Central have got 1 game to go. Sindh have 1, and Northern have only got 1. So there's a big advantage here to KP, obviously. And Balochistan, if they get the points tonight, big advantage to them as well, with 2 games in 2 days. That's all we got left. That's why Balochistan were ecstatic with the wicket and looking so despondent when perhaps a 4 is given away when it shouldn't be. And while he's trying to buzz as much as he possibly can. Good to see him back on the park, by the way. Spent a bit of time at a hospital earlier. And it is in the semis. Top 4 go through. In the semis, it's 1 versus 4 and 2 versus 3. So it's we're reaching the sharp end of this tournament. Balochistan play well tonight, get 2 points, win the next 2, they might get 12 points. It seems all under control. 152 for 2, 34 runs required of 21 deliveries. But if you look at Junaid Khan right now, he's just gone for 3 runs in these first 3 deliveries. He can finish this over, say, with 6 or 7 runs, maybe 8 runs given. It just gets a bit more interesting. It's not as simple as the equation then looks like. Just going to be the one, so it's another single. Right, so these last 2 balls are really important. Zishan has played superbly. 52 not out, 33 balls faced. Have a look at some of these shots. He's been moving around. Happy to play on the leg side whenever he can. That's been his favoured position. Likes playing that little shot, little scoop over the top. And anything short and wide, of course, he's going to put that away with ease. Should have been run out without scoring, actually. Single taken. So 5 singles off the first 5 deliveries. If Junaid Khan can end the over without conceding a boundary, I think that just makes it slightly more interesting. 32 off 19, say 30 off the last 3, and then you put in a good over in between there. So don't count Balochistan out just as yet. This needs to be a very good delivery, and if he can get 6 singles out of this over, then that's brilliant from Junaid. Oh, and it's burst through the keeper's hands.
They're going to come back for the second. It's not a bad result, but it could have been better. 7 from the over, 156 for 2. Three overs, that's all it is. 30 runs required now, but 8 wickets in hand. Now, I mentioned Zishan, who should have been run out. In fact, I said without scoring, it would have been without facing a ball, actually. Had this been taken cleanly, should have been taken cleanly. Everything was right about the throw. Umpire was unsighted. The ball was in the hands, but the ball was about 10 feet away to the left. Now Imad Butt has to follow that Junaid Khan over with an over that doesn't go for too many, doesn't go for boundaries. And all it takes is a couple of good overs back to back in terms of the bowling unit. And suddenly the game twists around. I like that. Ahmed just coming in and giving him a bit of advice. So his first couple of overs went for few. It's a full toss. And it's a wicket. Skipper's taken the catch. Wow, that's a bit of a bonus for Balochistan, right at the bottom of the bat. That wasn't expected. That is a big, big wicket. Now tried to hit this over the top. Bottom end of the bat. Imam with the catch. And it's a big wicket. The coaches know that a fight back here and they'll be in the game. Good innings from Zishan Malay, 53 of 35. It's 156 for 3. Right. First ball, the 18th over, picks up a wicket. Importantly, obviously, no runs offered as well, so that helps the equation. So now it's 7 wickets in hand, and Amin is the man that's in the middle. One batsman on 4, faced 3 balls, and Umar Amin has just arrived. 30 runs required in 17 balls. Boundary at a wide mid on. It's in the air for a while on the bounce. Shied the stumps. Bowler does well. He tried the Yorker. In the end, a very, very low full toss, which is a good result. Difficult to get that boundary away. Imam knows the importance of that wicket, big wicket. And just the importance of few deliveries here which can be bowled without conceding a boundary, and then it takes a whole new complexion. Now it's 16 deliveries, 29 runs, and if it stays over 20 last 2 overs to go with 12 deliveries to go, this will be very, very interesting, and this will probably then favor Balochistan. Last 20 balls, only 24 runs scored.
The other thing I just want to mention is that Balochistan only scored 3 runs off their final over they batted. And there's a bit more time wasted. I wonder if this game's going to finish today. Come on, umpires, you guys are going to get involved here. This is crazy again today. It was crazy 2 days ago. T20 match. Oh, it was very, very slow, and he put that away quite easily in the end. Had so much time to line that up. Premeditated, but he got the slow one, which sort of just never arrived, and was able to smack it over the top. He was looking for that reverse flick, but in the end it was a reverse smash down to third man. It was too short, and it just bounced too slowly off the pitch. That was the problem, to set up. So 5 off 3 balls now. 25 required off 15. Oh, he's got that away nice and fine. That's well played. Little tuck around the corner for a boundary. The boys like that in the dugout. Yeah, the reverse followed up with the cheeky little ramp shot, if you can call it the ramp shot. He stood up and made sure he's got bat on it and got it past fine leg. Back-to-back boundaries. Now that's put enormous pressure back on the bowler, Ahmad. 9 off 4 balls. He cannot concede a boundary now with the last 2 balls. Hard down the ground, hit it well. It's going to be 1 only. Last delivery off the over, it's almost like you want to have a swing at this. 20 runs required, you get a boundary here, and then it's all pretty simple. And Umar Amin might be well advised to take a chance of trying to clear the fence or get it to the fence. He's bunted it up in the air. This should be out. Has it been taken? Yep, it has. The captain's grabbed that with his blue fingers. That has been taken. So that's an important wicket as well. So they keep chipping away at these wickets. It certainly helps their cause. Balochistan. A slow one into the pitch. No timing on that. Too early with the shot. Just scooped it up. Imam Haq does the rest. Umar Amin goes for 1. It's 166 for 4. Rahel Nazir is the next man in. He's going to be at the non-striker's end. He's going to have to provide some good assistance here, because it's not going to be a one-man show. 2 overs remaining, 20 runs required, 12 balls it is. Jamal is there on 13 not out. 6 balls he's faced. Balochistan are having a meeting.
Another look at the dismissal. And a slow one not picked at all. Imamul Haq making good ground. Grabs it nicely. Well, Al Nazir is on strike. No doubt that Northern would prefer Jamal to be on strike, and he's just arrived. So a couple of overs to go now. I did say at the start of this innings I really hoped that that 3 runs off the final over when they had wickets in hand wasn't going to bite them. Balochistan, when they were batting. Omer. Nicely bowled first up. The slower bouncer. It's getting tight. It is getting tight now. 11 deliveries, 20 runs, and a dot ball at this stage. Gold dust. They've gone to that slower bouncer a lot. No pace off the pitch. Amir had the bright idea of reverse flicking or reverse sweeping it. And because there's so much time been given with that slow one off the pitch, you've got the ability to then smack it over the offside. There's a lot of protection leg side. You would think they would certainly want to get 10 runs on the next 5 balls to leave themselves 10 off the last over. Oh, it's gone over top the keeper, and that's gone for 4. That's a bonus. There was pace on. It wasn't a slow bouncer this time. It was a genuine pace on that by Umer Asif, and that's why the top edge flew to the fence. It's actually sped off the pitch and, importantly, sped off the bat to the fence. Right, so that again changes the face of this game. Disappointment for the Iron Man. He's got to come back. Got to come back and finish these next 4 balls well. Another boundary will be enormously helpful for Northern. Cries of catch it. It's in the air for a while. There's a man out there. He should take the catch. He does take the catch. No, he doesn't. It's another one grasped. There's been a few going down. It's a wet ball. It's not easy. But throughout the entire tournament, there's been quite a few going down. The split finger ball. Yeah, no timing. Oh, that's just burst through his hands, never in control. Umer Asif can't believe it. Neither can Imam. Well, they've got to put that behind them. They only took 1 off it. 15 required, 9 balls. Halfway through this over, again the pressure's on not to concede another boundary in this over. Oh, it's a big swing and a miss, gone just over the top of middle stump. So far it's been back of a length. It's been either short or just back of a length. Discussion now. Just about setting yourself up with the short ball. So 2 balls left. Let's have a look at the field. Fine leg is inside the circle. 3rd man is back. There are 3 men on the fence on the leg side. There's a man at deep square leg, deep mid-wicket straight, and a man at long on. There's those 3. There are 2 men at one's at extra cover inside the circle and also mid-off inside the circle. He's gone down long to long off. Is this taken? Yes, it is. You know it because the Iron Man's screaming. Imad Butt with the catch. And importantly, a dot ball.
Amir Jamal just maneuvering himself to the offside, trying to smash this off the back foot over the fence. Didn't get it in the middle, but in the middle of Ahmad Bhatt's hands. Ironman with the celebration. Amir Jamal out for 13. It's 171 for 5. Sahel Tanvir, 5 down now. 15 runs required in 7 balls. Best of 60 not out in those 369 games. A left-hander. So things are going to alter a bit on the leg side, which is clearly will be his chosen side, I'm sure. I've never seen him play a cover drive. That's where the tail enders, or the, I don't want to be harsh, the lower order batsmen, mid to low order batsmen, he's taller than me, like to try and hit their boundaries on the leg side at this stage. So it's the last ball of the over. 5 runs so far, a wicket off the last ball. Big swing and a miss. It is a dot ball. Really good work from Ahmed. 5 runs only and a wicket. 19 gone, 171 for 5. Back at the match summary, Shafiq's innings was just magnificent. 73 off 44. Imamul Haq played really nice as well. 50 off 39. Zaman picked up 3 for 31. Ali Imran 64 off 45. Who would have been so disappointed when he got out, along with Zisam, who was, I'm sure, thinking about finishing the game. 53 off 35. So really good performances with 2 guys to the bat from each team. But it's now 15 off the last. And there's a few blokes trying to work out the field placings. Ahmed had finished his over superbly, so his job today was done really well. Ahmed, 4 overs, 2 for 31, bowled at really important times. And Junaid is going to be bowling the last. 3 overs, none for 29 at this stage. Surely they can't get 15 runs off the last over. Baz, surely. Baz? You're saying surely. That surprised me. Lost for words. This man did it last night, did yesterday. I'm worried about 3rd man inside the circle and a man at backward point inside the circle. There you go. Yeah, right there. Exactly like that. So it's down to 11. It's the Yorker, but it's been squeezed out really nicely into the gap. You can't have a left armer bowling across to a right-hand batsman and blokes inside the circle there. And with that field set, you obviously plan for slower bouncers or slower deliveries, really. Anything angling across is going to end up there. Now there's another committee meeting. That would have been the plan, I agree, that would have been the plan, but it didn't happen. What's that horrible word? I hate that word. What? Execution. My goodness, I hate that word. How many times do your players say that in an interview? Now got to execute. Plans there, we now got to execute. Right, now we got a 3rd man. Anyway, I feel a bit better.
So fine leg in the circle, and mid-off now comes into the circle. So the opportunity now to hit straight. And you would think that's difficult. The slower ball will probably go leg side, and the quicker delivery you would think will be slicing across. Is it out? Oh no, on the bounce. Junaid Khan can't believe that. He's thinking, what about that? Why didn't you go for the catch? And as the ball went in the air, he sort of screamed at the fielder. And the reaction again. There was a big scream from Junaid as he realized that the fielder is not attacking the ball or coming towards the catch. Only went for one. So 5 off 2, 10 required, 4 balls remaining. Again, he's not going to play a cover drive. Tanvir. So now there's protection on the leg side again. 3 men on the leg side on the fence. Sohail Tanvir likes that leg side, the flick shot, the little pick up, fine leg in the circle. Well, that worries me again. He's hammered that, and he has played a cover drive. I take it all back, Tanvir. That is a magnificent shot for 4. Right off the screws as well. Leg side, well, I'll just go offside. Pick the bones out of that. Smashed away. Dugout can't believe it either. It's down to 6 off 3. Another discussion. Every delivery there's a discussion. Almost mandatory now. Imam with a few words. Where does Junaid Khan go now? Fine leg still in the circle. Swing and a miss. Dot ball, priceless. So 6 off 2. Do I go there? Do I go there now? A 4 and a 1 means 5, means a super over. There's never been a super over in the National T20 Cup since the format has been revised. Thanks, Baz. Right, here we go. Second last ball. Short bouncer. Has it gone over the top? Is it out? It's 6 runs. There it is. 6 to win, and it's 1 clean shot from the seasoned pro. He just hammered that for 6. That is a magnificent shot. Balochistan are distraught. Tanvir has played a blinder through the covers for 4 and then just smack it on the leg side for 6 to win the game. Yeah, that's the way to do it. Sohail Tanvir with a pull shot in front of mid-wicket that goes all the way. And they've chased down 186. And Sohail Tanvir in the final over brings out all the shots. None better than the victory shot. Imam frustrated, taking off his bandages, but too late now. It's like a walk-off home run in baseball. Magnificent work from Sohail Tanvir. Unbelievable stuff. Now that's put them in a situation which is a bit of a tangle. Balochistan now. Couple of games to go. They needed this one. They really needed this one. They haven't got the 2 points. He's in a bit of a hurry. He wants to get to the dugout. What a shot. Magnificent shot. Unbelievable stuff from the senior pro. And look at the boys in the dugout. Watch that white ball fly. And with that hit, Northern are the first team to qualify for the semis. Balochistan have it all to do. The short ball dismissed from his presence. Magnificent pull shot, magnificent hook shot
And this team, well, you can never count them out in terms of batting. They keep on attacking, and even with Sohail Tanveer, in the very end, they're able to get boundaries. No wonder the elation. Look at all the smiles on these guys. They lived every minute of this chase. Oops, the captain's not happy at all. He's got a couple of bruises, I'm sure, as well. And that's just from the other day, let alone today. Well, what a finish to the game. Magnificent finish to the game. Reflecting on this is quite amazing to look back that Ali Imran played so well with his 64 or 45 balls. He really played some superb shots. Zishan also 53 off 35. He also played some magnificent shots. So I've got to go down to Tanveer now. 4 balls he faced and scored 2 boundaries in the space of 3 balls, 1 through the covers and 1 out of the park on the leg side to seal it. Now Balochistan fought 2 wickets for Ahmad, but the pick of the ball was 1 for 24, Kashif Bhatti, but it was just not enough. 186 for 5, chased it down with 1 ball to spare. Junaid Khan had the night to forget. 3.5 overs, none for 44. Right, what a game. Let's have a look at match number 26, a summary. Balochistan 20 overs, 185 for 7. Shafiq, brilliant, 73 off 44. Imamul Haq played very nice for his half century off 39 as well. And then, as I said, Ali Imran, I should say, and Zisham played nicely as well for a couple of 50s. But in the end, it's Northern's winning by 5 wickets. What a win. What a win to Northern. Right, let's see what's happened to that points table after that. We've got a queue for qualified for the semis. Northern at the top now with 12 points. KP second with 10 also, with a reasonable net run rate. Not far behind them is Home City Central Punjab with 10 points. Also a reasonable run, in fact, a pretty good run rate as well. And GFS Sindh sitting at number 4 with 10 points. Also the run rate's okay. Balochistan have got some work to do now, 6 points, and we know that ATF Southern Punjab are out of the situation. So Balochistan have still got a bit of a sniff. Things got to go their way, of course, with results. But Northern become the first team to qualify for the semi-finals. Right, I think we can all take a little bit of a breather now, maybe a lie down. Rejoin us in a couple of minutes' time for the presentation.
बहुत ही शानदार विक्ट्री यहाँ पे नॉर्दर्न की और बड़ी ज़बरदस्त मैच हुआ ये मैच 26 और 5 विकेट से नॉर्दर्न ने मैच जीत लिया। इससे पहले कि प्लेयर्स को इनवाइट किया जाए उनके इनामात के लिए, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मिस्टर हमजा जमशेद को जो यहाँ मौजूद हैं ऑन बिहाफ ऑफ होमेज अप्लायंसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। उसके बाद इनवाइट करूंगा जीशान मलिक को, उनके 53 रन 35 गेंदों पे शानदार परफॉर्मेंस आज के होमेज अप्लायंसेस के इलेक्ट्रीफाइंग प्ले। 15,000 का उनका इनाम। शानदार पार्टनरशिप रही अली इमरान के साथ और अच्छा स्टार्ट दिया टीम को और जीत भी दिलवाई। थैंक यू जीशान। उसके बाद आज के पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच और वो हैं अली इमरान ऑफ कोर्स। 64 रन 45 गेंदें और बहुत ही उम्दा नॉक खेला, टीम को जितवाया। सबसे पहले ये ब्राइट ओपेन्स फैन ऑफ द मैच की बॉल साइन करेंगे और उसके बाद अपनी ट्रॉफी और कैश अवार्ड पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच का रिसीव करेंगे 25,000 रुपए का। 64 रन बनाए 45 गेंदों पे और अली से बात भी होगी। अली आज शानदार इनिंग्स रही। कितना इंपॉर्टेंट होता है एक यंगस्टर के लिए कि जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब किया जाए, कितना प्रेशर रहता है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली है और कैश करना और बाकी जिस तरह ये होम ऑफ क्रिकेट है यहाँ पे परफॉर्म करना, अपनी टीम को जितवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह पेस किया अपनी इनिंग्स को, क्योंकि यहाँ पे रन चेस करना कहते हैं हो जाते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है पावर प्ले से लेके एंड तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पिच ने अपना बिहेवियर काफ़ी चेंज किया है। जिस तरह पहली इनिंग्स में पिच पे बॉल आ रहा था, सेकंड इनिंग्स पे ग्रिप करना शुरू कर दिया था। तो हमारी टीम में अब उस तरह डेप्थ नहीं है जिस तरह हमारे 6 प्लेयर्स वर्ल्ड कप की टीम में चले गए हैं। तो अब हम लोगों ने स्टेप अप करना है, हम लोगों ने अपनी टीम को लेके चलना है। तो मेरे माइंड में यही था कि जितना लंबा मैं लेके जाऊँगा तो इंशाल्लाह मैच को फिनिश करके बाहर आऊँगा। चलिए अपॉर्चुनिटी मिली, अवेल किया आपने, वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच। अली इमरान आज के प्लेयर ऑफ द मैच। अब मैं इन्वाइट करूँगा आज के लूजिंग कैप्टन को, बलोचिस्तान की कप्तान इमामुल हक, उनसे बात करते हैं। इमाम, परफॉर्मेंस अच्छी रही ओवरऑल, मुश्किल होता है ऐसी डिफीट को एब्जॉर्ब करना इमीडिएटली? देखिए आप रेडी रहते हैं, T20 क्रिकेट है, दिस इज़ यू एक्सपेक्ट इन T20 क्रिकेट, मगर ये है कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी जो है हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से मैच जो है उनकी तरफ चला गया। मुझे लगता था कि हाँ हम मैच जीत सकते थे, बट दैट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट। टूर्नामेंट में है अभी तक आपकी टीम, आपने खुद अपने इंडिविजुअली थोड़ा बैटिंग को चेंज किया, लंबा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा रोल डिफाइन हो गए हैं अलग अलग बैट्समैन को? देखें रोल पहले भी डिफाइन होते हैं, बट इन क्रिकेट, इन T20 क्रिकेट होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो माइंडसेट आपका कैसा है। कभी कभार T20 में ऐसा होता है कि आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, लेकिन अच्छा होता है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होते हैं कम दिनों में, तो आप उसी फ्लो में खेलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास 2 मैचेस हैं, हम गैदर करेंगे, खेल अच्छा रहे, हम फाइट अच्छी हो रही है, तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको इंजरी से बचना चाहिए, आपने आज सबको डरा दिया फिर से। नहीं, बस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। गुड टू सी यू स्टैंडिंग टॉल। थैंक यू। कप्तान इमामुल हक, अब उमर अमीन विनिंग कैप्टन नॉर्दर्न के, उनसे बात करेंगे। शानदार परफॉर्मेंस रही है और कहना पड़ेगा कि जब आपके बहुत सारे प्लेयर्स चले जाते हैं तो एक ऐसी विन जो है वो ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा बूस्ट देती है टीम को आगे टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल, जिस तरह हमारे बेंच स्ट्रेंथ ने आके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया है, आई थिंक ये बड़ा अच्छा साइन है हमारी क्रिकेट के लिए। ओवरऑल अगर इस मैच को देखते हैं हम तो आपको ये लग रहा था कि ये गेटेबल टोटल है, यहाँ पर कहीं ऐसा मौका आया था लगा कि स्लिप हो रहा है गेम? वेल देखिए, टू बी ऑनेस्ट, एक यहाँ पर हमने पहले चेस करवाया था 210, आज उससे टोटली ऑपोजिट खेली है पिच। सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा बॉल ज़्यादा ग्रिप कर रहा था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऑपोजिट था। इतना हमें थोड़ा कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था, इतना क्लोज मैच को जाना नहीं चाहिए था। एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाइड होंगे, यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, डाउन द ऑर्डर ऑल्सो बैटिंग में, टॉप ऑफ द ऑर्डर एज वेल? बिल्कुल, एज अ कैप्टन टीम के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि यार हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ थी उन्होंने आके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया और हमारा जो विनिंग मोमेंटम है वो सेमीफाइनल्स के लिए हम इसको कैरी करेंगे। चलिए, गुड कैप्टनसी उमर एंड गुड लक। तो ये है प्रेजेंटेशन से इतना ही कि 5 विकेट से नॉर्दर्न ने मैच जीत लिया। Secundo, thank you very much. Righto, we got a couple of games for you yesterday, tomorrow I should say. ATF Southern Punjab versus KP, and that's going to be at 2:15 local time on air. And that's the first game. The second game is going to be at 7:15 local time, and Balochistan have got to shake themselves down and fire up again tomorrow, and they're up against home city Central Punjab. So plenty of action tomorrow again, couple of games. Tell you what, we had some action today, plenty of action in the last game as well. I hope you enjoyed it. We look forward to your company tomorrow.